Basically, it is output upon input of certain quantity. So basically, efficiency of firing process is defined as energy observed by a pottery or load which is inside the furnace to that of the maximum energy that is being released by the fuel firing fuel during combustion process. You see tawa firing process. So this is how it is arranged. I mean, this is how the ground is prepared. Basically, the firing process is called open firing process, as currently whatever firing process that is being used in Pucheri village. So open firing process means it is not having any insulation. So here we can see that single layer of tawas are stacked, which is shown in the top left figure. So the tawas are stacked over fuel. So the burning fuel here there are two fuel that are mustard husk, which is called as turi, and another one is dung cakes, which is also called as uple locally. So this is how the ground and the firing process is arranged. So this is open firing process. So in order to see that what kind of energy uh, which are involved during the efficiency calculation and how they are calculated. So first, how to calculate the energy absorbed by the pottery. Basically here the pottery is a tawa. So energy absorbed by pottery is given by mass of pottery multiplied by the specific heat of pottery multiplied by the temperature rise. And where the temperature rise is the difference in the temperature before firing, and TF, which is uh, the maximum temperature that is attained by the pottery ware during firing process. So the temperature rise is TF minus T initial. Coming up to the calculation how the heat released is calculated. So we all know that all the firing fuels have certain calorific value, which is the amount of energy released per unit mass during combustion. So it is the maximum amount of the energy that is released in the form of heat. So as we know that in the current firing process there are two types of fuel. So the total calorific value will be equals to the total energy released. Total amount of energy released during the combustion will be equals to the energy released by turi, which is mustard husk, plus the energy released by the dung cakes, which is called uple. So that's how we calculate the energy absorbed and energy released. So during our field visits, we have calculated for the ongoing firing process, we have calculated the mass of the tawa that was fired, which is required for the calculation. We have taken the specific heat of pottery as the specific heat of clay material, which is around 880 joule per kg Kelvin. The initial as we went during November, and the normal temperature, the environment temperature was around 18 to 20 degrees. So we took as the initial temperature as 20 degree, and finally it was estimated that through readings through thermocouples, it was estimated that the maximum temperature of the pottery it went up till 800 degrees centigrade. So the temperature rise was around 780 degrees. So that's how the amount of energy absorbed by pottery, which is tawas, 1300 kgs of tawas is around 892 megajoule. So now how to calculate the input energy or the energy that is released. So during our field visit, we had collected some amount of fuel, and we uh, measured and did an experiment using bomb calorimeter in order to find the calorific value of mustard husk and dung cakes. Also, we had measured the mass of mustard husk and dung cake that was being used during the firing process. So we know that the uh,
the energy, the maximum amount of energy that is released during combustion is equals to mass of the fuel times the calorific value. So by including all the energy which includes the energy released by mustard husk as well as the energy released by dung cakes, the total amount of energy that was estimated to be released was around 12,004 megajoule. And thus by dividing the absorbed energy to that of release energy, it was calculated that it was seen that the conventional tawa firing process has an efficiency of around 7.5%. That means remaining energy is being wasted or dissipated in some other form. So based on the experience of our group, there is expected there is a probability that we can increase the efficiency of this firing process by incorporating or bringing kiln which could act as insulator. Thus how we can minimize the energy losses, and thus we can maximize the efficiency of current firing process, which is the objective of the tawa firing process that we have taken under Ruta Guided Delhi projects. So this is all about the efficiency of firing process calculation. Thank you. कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? एक बार पीछे जाओ एक बार। तो ये जो नहीं आगे चलो, नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट पीछे नहीं, आगे, हाँ नेक्स्ट, हाँ हियर। तो ये जो मास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉटरी, ये कहाँ से, डेटा शीट से लिया? हाँ सर, ये इंजीनियरिंग डेटा शीट से लिया। वो जनरली जो क्ले है ना, क्ले के आसपास का जो भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, तो अच्छा, नहीं तो उसका भी तो कुछ रेंज होगी ना मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सर, तो वही इट इज लेस देन 1000। अच्छा, नहीं तुमने कंजर्वेटिव वैल्यू लिया है क्या ओवर वैल्यू लिया? मतलब इफ एफिशिएंसी और तुमने जो भी निकाल रहे हो एक्चुअली वेदर इट इज अ हायर साइड एस्टिमेट और द लोअर साइड एस्टिमेट? मतलब हायर साइड लोअर साइड नहीं लिया है सर, मैंने जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का बुक है उसमें जो क्ले का जो स्पेसिफिक हीट है उसी को लेके ले लिया है। What I'm saying is specific heat का तो कुछ रेंज होगी ना मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज यू डू नॉट नो एग्जैक्टली ना। तो जो भी डेटा शीट में दिया होगा, तो डेटा शीट में क्या वन नंबर दिया था, क्या रेंज दिया था? दैट्स एक ही नंबर दिया हुआ है सर। अच्छा, ये इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तुम्हारा मेजर्ड डेटा है, ये भी एस्टिमेटेड डेटा है? ये सर जब हम फील्ड में टेस्टिंग कर रहे थे तो हमारा मतलब 3 बजे से शाम से चालू हुआ था, तो दूसरे दिन दोपहर तक चला था। तो उस वक्त जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमने मेजर किया था तो 18 to 20 डिग्री वो वेरी कर रहा था, तो हमने अभी 20 डिग्री लिया है इसे। सुबह में अराउंड 20 डिग्री के आसपास था, रात के 1-2 बजे के आसपास 18 डिग्री। मेरा अल्टीमेटली कहने के लिए जो है, जो तुम्हारा जो अल्टीमेटली जो भी तुमने एफिशिएंसी निकाला है एक्चुअली नो, तो एक्चुअल एफिशिएंसी सपोज करो कोई मेजर करने के लिए कोई तरीका होता, प्लस माइनस कितना वेरिएशन होने का चांसेस है ड्यू टू दिस वेरिएशंस जो तुमने डेटा में लिया ना, जैसे 18 to 20 डिग्री, कभी-कभी 18 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, राइट? So what I'm saying is, what is your estimate of variation of your efficiency? जो तुमने कैलकुलेट किया, कितना किया? 7.5% कुछ किया ना? हाँ सर, तो ये जो डेटा को हम वेरी कर रहे हैं ना सर, जैसे इनिशियल टेम्परेचर को अगर घटा देंगे तो थोड़ा एफिशिएंसी हमारा बढ़ जाएगा, तो वो इट इज कमिंग अराउंड 7 to 9%। हाँ, ये मैं बोल रहा ना, तो ये अंदाजा होना चाहिए ना 7 to 9%। ऐसा नहीं हो ये 7 to 15% होगा तो बहुत ही गड़बड़ी है ना। हाँ सर, तो एज एन इंजीनियर यू शुड अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ लिखा है सिंबल भी। नहीं अप्रोक्सीमेटली ठीक है, बट एज एन इंजीनियरिंग थोड़ा सा रेंज हमको पता होगा। तो सपोज
सिमिलर एक्टिविटी होते होंगे सपोज दूसरे जगह में 50 किलोमीटर दूरी कोई जगह में होती होगी रे, तो हमको अंदाजा sir. ये होनी चाहिए कि ठीक है 7 to 9 हमारा वेरिएशन होगा, तो किसी भी हाँ, हालत sir. से साथ 7 से घट के 4 और 5 नहीं होने का है ना, तो यू कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग. हाँ सर, हाँ सर. एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है, चलो आगे चलो नेक्स्ट. थैंक यू यशवंत. थैंक यू सर. सर अब मैं शेयर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हेलो. यस यस यस. Good morning everyone. Today I will be explaining about the basics of iron carbon diagram. It is also called as the iron carbon diagram because in this diagram we have the iron as well as the iron and carbon compound together. So this will be the outline of today's presentation. My presentation will be in two parts. In this presentation I will explain the basics only, and in the upcoming welder session I will be explaining about the next part of the presentation. Today I will explain about I will give a brief introduction and will show the cooling curve of pure iron, then the definition of structures and the iron carbon diagram sketch. So as we all know that this is the iron carbon diagram. I will come at it later, but first of all we need to understand the how the phases changes in iron with the variation of temperature. So to understand that, we need to have a minimalistic understanding of cooling curve of pure iron. So as you can see, we have the liquid state of iron in at above the 1538 degrees Celsius, and this is the pure liquid state of iron. And if we cool it down to 1400 degrees Celsius, then from 1400 degrees Celsius to 1538 degrees Celsius, we have a delta iron formation, which is a body-centered cubic crystal structure. And if we cool it down a little bit, then from 910 degrees Celsius to 1400 degrees Celsius, we have the gamma phase iron, which at which this changes its crystal structure to face-centered cubic structure. It is non-magnetic also, and then further cooling it down to 770 degrees Celsius, we have the alpha iron, which is body-centered cubic and non-magnetic also. And below 770 degrees Celsius, we have the alpha iron, which is magnetic, and it is the purest form of iron, which is also the body-centered cubic structure. So now I will give you some definitions of the structures which come across while we learn the iron carbon diagram. So in the iron carbon diagram, there are certain structures which form, one of which is ferrite, the pearlite, austenite, cementite, martensite, and lead-gorite. So I will explain it one by one. First of all is the ferrite. Ferrite is known as the alpha solid solution, which is below 912 degree centigrade to be exact, and it is a body-centered cubic iron, and it has the maximum solubility of 0.025% carbon at 723 degrees, and it dissolves only 0.008% carbon at room temperature. It is the softest structure which we can see on the diagram. Then here are some properties of ferrite. It has the tensile strength of 275 megapascal, and it can elongate 40% in 2-inch specimen.
It has a hardness of around 0 at Rockwell C scale and around 9 at Rockwell B scale. Then comes the perlite. Perlite is a eutectoid mixture which contains 0.80% percent of carbon. Eutectoid mixture is one where the liquid phase converts into two-phase solid. It means it will have some of the solid particles and some of the liquid form and solid form at the same time. When it goes from liquid to this two-phase solid, then it will be called eutectoid mixture. And it is formed at no, sorry. This will be at from solid to solid and liquid, and it is formed at 723 degrees Celsius. While we will be very slowly cooling it. And it has some plate-like structure. As you can see here, this is the microstructure of the perlite, and as you can see this dark area, these are the plate-like structures, and these are bound together by this white background. This white background is the ferrite element, and these are the cementite. Cementite, I will explain it later. Cementite is very high carbon rich ferrous structure. So perlite has these several properties such as the tensile strength of 827 megapascal, and it can elongate up to 20% in 2-inch specimen, and it has a 20 HRC on Rockwell hardness C scale, and 95 to 100 on Rockwell B scale. Then comes the austenite. It is the interstitial solid solution of carbon dissolved in gamma iron. As we can see that as we know that the gamma iron stands between 1130 to 14 or 1500 degrees centigrade. So this austenite is comes at 1130 degrees Celsius. It has the maximum solubility of carbon as 2%. It can absorb, it can dissolve carbon in it, and it has the high formability, but it is not stable at room temperature. So we have the austenite properties here, like the tensile strength. It has very high tensile strength, 1034 megapascal. It can elongate up to 10% in a 2-inch specimen. It has a 40 hardness at on Rockwell C scale, and it has a high toughness. So this is the microstructure peak of austenite. Then comes the cementite. Cementite is very rich in carbon. It contains 6.67% of carbon. It is the hardest element or structure we can see that appears on the diagram. And its crystal structure is also not cubic structure. It is orthorhombic structure. And it has a low tensile strength of 34 megapascal, but it has high compressive strength. Then comes the ledberite. It is the eutectic mixture of austenite and cementite. As I have explained later, that eutectoid is the solution where the structure becomes when the solid structure converts into two-phase solid. But in eutectic mixture, the liquid structure becomes two solid mixture, like the liquid and solid together. And it contains 4.3% carbon, and also formed at 1130 degrees Celsius. Then comes the martensite. It is the supersaturated solid solution of carbon, and it is formed when the steel is cooled so rapidly, and it will change from austenite to perlite.
between the austenite and perlite, there will be the martensite which will form when it is rapidly cooled. So it is we can say that it is responsible for the hardness, improving the hardness of steel. So I have explained the basic structures which will come in the iron carbon diagram. But what is the iron carbon diagram? It is a map which shows different temperatures and different phase changes which occur during heating and cooling of the iron in relation to carbon. So this also shows the alloys formed when slowly cooling it, and it also shows it can be used as the heat treatment temperature and other properties to predict these properties of steels and cast irons also. So there will be three-phase reactions happening in the iron carbon diagram, because in the iron carbon diagram stands on basically three lines. One is this line, second one is this one, and third one is this one line here at around 1490 degrees Celsius. So there will be three phase reactions. So first reaction will be is known as peritectic reaction, which occurs at 1490 degrees centigrade. It has a low weightage percentage of carbon alloys, and it has almost no engineering importance. And the second one is the eutectic reaction, which comes at 1130 degrees centigrade, and it has 4.3% of carbon alloys. These are also called the cast iron. And then comes the eutectoid at 723 degrees centigrade. Has the low composition of carbon, like 0.8 to 1% of carbon. And also the two-phase mixture ferrite and cementite also happens in this below this 723 degrees. So how to read the phase? How to read the iron carbon phase diagram? So I have already explained these reactions which happens at 1490 degrees centigrade and 1130 degrees centigrade, 723 degrees centigrade. We have to relate them with these horizontal lines which are shown on this diagram. First one is the 1490 degrees centigrade here. The liquid and delta liquid plus delta iron, it can become austenite, and it can convert into back into liquid form of gamma of the delta iron. And at this one 1130 degrees centigrade, we will have this reaction, liquid to austenite plus cementite, and to reverse to liquid. And at this 723 degrees centigrade, we will have the austenite and perlite reaction. So this is the iron carbon diagram, and these were the basics of it. So I will be explaining in the next presentation about the delta region and the austenite to ferrite transformations and other perlite transformations also. Thank you. Okay, thank you. Next question है कोई? And like what exactly is the diagram used for manufacturing different kinds of iron? Yes, for manufacturing different kind of irons and steels also, and to predict the property changes in relation to temperature and the carbon percentage. Any other? No, thank you आशीष. अच्छा ये वाला दिखाओ थोड़ा सा, क्योंकि हमें टाइम और एक भी बचता है. एक बार ये हो गया हमारा न्यूज़लेटर हो गया.
ये सर मैंने उन्होंने सर एक फाइनल वाला जो प्रिंट के लिए भेजा था वो आज भेजेंगे, लेकिन बट जो तुम्हारे पास हमने भेजा था सर वो वो वाला वो देखा भेज दिया था सर। तुमने जो भेजा था वो देखो एक बार ठीक है। क्विकली, किसी से कमेंट्स आए तो देखो। नीचे एक्चुअली ये ना विभाग की काफी पुरानी पुरानी पिक्चर है, काफी यंग लग रही है इसमें ना, तो लेटेस्ट कुछ मिली नहीं। सर लेटेस्ट एक था, लेकिन सर उसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा ठीक, मतलब तब ठीक है, तब तो रहने दो। चलो नीचे जाओ। जाओ। चलो अच्छा, कुछ हिंदी नहीं आया इसमें। है सर, ये रहा सर। अच्छा अच्छा, सॉरी, मास्क खोला। ये कौन ट्रांसलेट किया? ये आशीष भाई। सर ये आशीष वैद्य सर, वो हाँ, विनय सर टेक्सटाइल में। ने हाँ नहीं ये सर, विनय सर ने भेजा। नहीं, विनय ने करेक्शन किया है एक्चुअली, ट्रांसलेट किया आशीष वैद ने। आशीष वैद इज अ टेक्सटाइल का हमारा एक अटेंडेंट है, तो ये चीज भी हम कैसे करें एक्चुअली। चलो, टेस्टिंग और जो जो वेरीफाई करते हैं उसका नाम हम देते थे कि पहले किसी ट्रांसलेटर के नाम देते? सर ट्रांसलेटर का ही नाम देते हैं सर, ठीक क्योंकि है, सर जिसने लिखा है सर वो लास्ट में मतलब ठीक है, आ गया सर। ठीक है, ओके, चलो अच्छा हुआ, तो आने देते हैं इसको। जी सर। अच्छा, वो आशीष वैद और वो हमारे विकास सिंह मिलके ना जनवरी इशू का पूरे जी हिंदी सर। में ट्रांसलेट कर रहा है एक्चुअली ना। जी सर उनको सर हाँ भेजा था मैंने सर, वो ड्राफ्ट हाँ भेजा था। हाँ, तो उसमें वो करेंगे तो उसको एक ना स्पेशल इशू निकालेंगे हिंदी वाला, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग ओके पूरा हिंदी अभी तक हमारा आया नहीं है। एक बंगाली आया था, एक उड़िया आया था ना पूरा, अभी यस हिंदी सर, कोई यस आया नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मेहनत करके तुम ही कोऑर्डिनेट करो, गाइड कर देना इसको, बिकॉज यस दोनों ही नो यस अटेंडेंट है, थोड़ा सा जूनियर है। ओके यस चलो नेक्स्ट। यस यस नेक्स्ट। Yes, sir. Okay, good morning. So I'll be giving some information about importance of ergonomics and some factors which should be taken care of while designing. So ergonomics, it is, or sometimes known as human factors. It is a scientific discipline where the interaction among human and other elements of a system or a machine is studied, and the main objective is to optimize the human well-being and the overall performance of the system. So bringing out a balance between these two is the main objective of the ergonomic study.
Some factors which should be considered in ergonomics I'll be showing, which I studied in a book. One of the important things is the body posture and movement. So what are the factors that should be considered while operating a machine or while designing anything? So we should make sure that the joints of the human body, they are in a neutral position as far as possible. So if you can see in this figure, once the operating or the machine goes far from the body, you can see there's a moment which is created due to the weight of the machine or the weight of the arm itself. So this can cause damages or problems in the lower back, which should be avoided. So the work should be as close as possible to the body or whatever the workspace or the machine. And while designing, we should also make sure that bending forward is minimized. So if we bend forward again, there will be loads on the spine and lower back. So in longer duration of time, that can have detrimental effects. So that also should be avoided. And it should be taken care that alternate postures and movements are encouraged. For example, if something is done using right hand for some time, the change of hand or those things should be taken care of so that the load is minimized in one side of the body. For this is an example where an ergonomic design should be taken care of, like a trolley with handle. So these are some of the dimensions which is recommended for an ergonomic design. For example, the handle diameter should be 3 centimeter at least. The uh, distance between the trolley and the handle, the width should be greater than 7 centimeter, and the length here also should be more than and 3 feet. Again, the top length as well is given. So this is an example of an ergonomically designed trolley. Some other factors include environmental factors also. For example, the noise. Noise should be below 80 decibels on an average. So this is a chart where you can see as the noise level increases along with the duration of exposure. This is not considered to be healthy working environment. So 80 is considered on average to be very good for working environment. And you should also take care that the noise should not be very low, that below 30 decibels, it can cause more distractions in the working environment as well. Annoyance should be avoided. And for vibration, also there are limits where for the whole body, the vibration here is instead of hertz, it is defined in the velocity, that is the peak amplitude. So 0.5 meter per second for the whole body, and for the hand or arm, the machine should not vibrate more than 2.5 meter per second. This is again for the work environment where adequate light intensity is should be there. Some other factors to be considered are visual information. Wherever a machine or something is conveying visual information, it should be designed in such a way that there are no obstructions. The control panels that should be taken care of, and the user friendliness. And what is the importance of ergonomics? We can define in two ways. One is the social value and another is the economic value. So in case of the social value of ergonomics, it contributes to the well-being of in terms of safety, health, and comfort. And it is observed that if ergonomics is followed in a design, accidents are reduced because the operator feels lower fatigue, and thereby the error or operating error is reduced. It reduces the musculoskeletal disorders, and also it is seen that psychological effects such as stress and depression is decreased when workers are using or working in an ergonomic environment and ergonomically designed tools. So with the health and well-being comes economic value as well. The costs related to health issues, the chronic health problems, they're reduced. So it is good for a company or an organization to have its setting designed economically.
and naturally the productivity also increases since the operators feel lower fatigue and he can work for a longer duration. Thank you. This is the book I refer to for this presentation. Question? So with respect to some of our setup, maybe you could have taken some reference, some guidance you could have given. For example, Yes, you go to item slide number 4 and the handle. Now in our vermicomposting, what is the size of the handle? Rajkumar batayega maybe. हेलो हाँ, हैंडल का साइज क्या है? यहाँ बोलते 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. 3 सेंटीमीटर हमारा हैंडल का क्या साइज है? किसी कैसा है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग है? वर्मी कंपोस्टिंग का जो कोई हैंडल नहीं है हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग में. उसमें तो अभी नहीं लगाया है, जस्ट वो एक लॉक करने के लिए हमने लैच टाइप से लगाया है कि जो लॉक करके उसको खोल करके सीधे बस ऐसे खोलो. छोटा सा है वो, मतलब 1 फुट का है, 2 फुट का, इसलिए प्रॉपर इतना बड़ा नहीं है कि हैंडल वगैरह. चलो हमारा और क्या कुछ मशीन है जिसमें हैंडल है? तुलसी माला का कवर में होगा बट वो स्मॉल. तुलसी माला के कवर में है, हाँ, छोटा वाला हाँ, वो but that is लगभग not- 100 mm के आसपास है, 4-5 इंची का हैंडल. मतलब जितना हमारा 4 फिंगर्स आ जाता, थोड़ा सा क्लियरेंस रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग. हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हाथ 7 आराम से 7. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 7 सेंटीमीटर क्या चाहिए? 7 7 सेंटीमीटर क्लियरेंस और डायमीटर 3 सेंटीमीटर. हाँ, बहुत 7 ज्यादा. सेंटीमीटर उतना. बट ये काफी भारी है इसीलिए हो सकता है. हाँ. तो यहाँ पे क्वेश्चन सूरज के लिए है. सूरज, इज इट नॉट डिपेंडेंट ऑन क्या लोड टू बी कैरीड एंड व्हाट इज द साइज, उसको वो डिपेंड नहीं करेगा? हाँ करेगा. ये बस एक एग्जांपल था ऑफ ट्रॉली अच्छा, का. वो 3 नंबर में जाओ. 3 नंबर, व्हाट इज द थर्ड स्लाइड? हाँ, so what I would be more interested, whatever studies you people are doing in, तो ये तुम्हारा अपना साथ कोरिलेट करो. इवन आयरन का आयरन डायग्राम ही हैज गिवन फॉर एग्जांपल, आशीष ने दिया है ना. So probably the steel people are using, like at least for our ship shading. So we have a body, we have some component. I think unless you try to correlate with what you have. So for example, तुमको ये होना चाहिए जो मैं स्टील यूज कर रहा हूँ, तो आयरन का आयरन डायग्राम में कौन सी पोजीशन वाली स्टील हम यूज कर रहे हैं? तो इज इट करेक्ट? That's why I have studied this, sir. Yes. नहीं, बट तुमने प्रेजेंटेशन में तो बताया नहीं है कि ये आयरन का डायग्राम में ये जो है हमारी जो मटेरियल जो है ये D2 स्टील है. D2 स्टील ये कंपोजिशन की है. तो यहाँ पे ऐसा ऐसा मटेरियल ओरिजिनली होता है, इसको हम टेम्परिंग करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, इधर जाते उधर जाते इधर जाते हैं, फिर यहाँ पे हमारा 62 HRC बनता है. तब ना मजा आएगा ना. नहीं तो बाकी लोगों के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे लिए तो ये ग्रीक लैंग्वेज जैसे लगेंगे एक्चुअली. Yes, sir. many of us इस presentation, बोलो. सर इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ जो बेसिक था ना सर वो बताया. तो नेक्स्ट में सर जो मैं अपने वाले शिप शेयरिंग के मेटल्स को अपने आयरन कार्बन डायग्राम में दिखा के वैसे शो करूंगा. देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग बेसिक तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तुम सिखाओगे तो जितना बेसिक की भी होना हो ना, तो हमारे एग्जाम्पल के साथ ले लोगे ना. एक बच्चे को भी हम क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलौना देते क्रिकेट खेलने के लिए, वो तो बच्चे क्रिकेट खेल नहीं सकते ना, तब भी उसका छोटा खरीद के हम दे देते ना, फीलिंग देने के लिए. उसको तुम क्रिकेट दिखाओगे टीवी में, देखो बच्चा ऐसा क्रिकेट खेलना होता है, यू और शी विल नॉट फील एनीथिंग. बट एक छोटी सी बैट. सिमिलरली जो भी तुम्हारा छोटी सी चीज है, थोड़ी सी पढ़ने के बाद तुरंत अपने के साथ कोरिलेट करो ना, तब पता चलेगा. सेम विद सूरज आल्सो. व्हाट ही स्टडीड अबाउट एर्गोनॉमी, एक एग्जांपल वहां से लिया है. इफ यू ट्राई टू टेक एग्जांपल इन योर डेली लाइफ और तुम्हारा प्रोजेक्ट से ले पाओगे, तभी प्रोजेक्ट का वैल्यू बढ़ेगी. सारे वेल्डर का पर्पस तभी सेटिस्फाइड होगा
when you are able to correlate it actually. नहीं तो अनएम्प्लॉयबल जो मैं बोलता हूँ ना इंजीनियर इसी के टाइप के ही रह जाओगे, पढ़ना Yes. एक साइड में रह जाएगा, काम एक साइड में रह जाएगा, ये दोनों का ब्रीच करनी चाहिए, right? Yes, sir. और मैं बिना तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता ये भी पता नहीं है एक्चुअली, दैट मींस दे मस्ट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग। अभी सूरज एक पूछा था एक्चुअली। In चलो slide नेक्स्ट, 5, sir. Slide number 5, Suraj. स्लाइड नंबर 5। Yes. So roughly we have somehow estimated in Tulsi Mala bead making machine the noise level. कितना है वाले? It is coming means overall during the operation it is less than 80 dB A, but while starting the operation for about a second it goes till 90 also. So whether it is चलो harmful. तो ये दिखा है नॉट हार्मफुल, मेरा हिसाब से तो नॉट हार्मफुल ही होगा। हाँ 8 90 घंटा मतलब तक अप टू 1 आवर तो होगा शायद। Okay. हाँ अप टू 1 आवर ना, 80 GB होगा तो 8 आवर्स तक भी चल रहेगा। हाँ, तुम्हारा तो उतना देर तक रहता नहीं होगा ना 90 GB में। नहीं। चलो ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट, थैंक यू। चलो इंटरेस्टिंग हो रही है स्टडी। मंगल बताओ क्या सिखाएगा मंगल आज? म्यूट में मंगल जी। Hello, good evening. Today I am presenting the process of mat for wooden board. Help सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा बात को मंगल? मंगल तुम्हारा बात नहीं सुनाई दे रहा है, जी काट रहा है। दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो क्या होती है। मेरे पास तो नहीं आ रही है, बाकी को पूछो। नहीं आ रही है मंगल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। मंगल कैंसिल करना पड़ेगा इसको? हाँ सर, क्योंकि वो म्यूट है फिर भी उनकी ऐसी आवाज आ रही है। तो उसको स्लाइड भेज दिया होगा ना उन्होंने? जी सर आ गया है। अच्छा अभी आ रहा है सर, आवाज आ रहा है अभी अच्छा आ रही है। हाँ अभी करो। जी सर, आ रहा है सर। हाँ आप फिर से
नहीं रहने। जी सर। First we cut the material wooden board from wooden board, thickness 12 mm, dimension 500 into 500 into 12 mm. Cutting of wood, cut the 2 square pieces from a big board as above given dimension. With the help of a circular cutter, next लीजिएगा जी, दिक्कत हो रहा है इसमें। नहीं यार, तुम स्लाइड भेज दिया क्या? तो मोबाइल से बात करो ना, मोबाइल किसी ने जी माइक सर। में रखो। ये मेल भेज दिया होगा ना तुम्हारे स्लाइड्स? जी सर, स्लाइड आ सर, अभी तो नहीं दिखा रहा, पहले दिख रहा था। अब आप आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही है। स्लाइड के भेज दिया हेलो। क्या ऑलरेडी? हाँ जी सर, भेज दिया है हमने। तो मोबाइल से बात करो, कोई माइक में डालेगा। तुम कांटेक्ट नहीं हो पड़ी तो कोई इशू नहीं है। नहीं सर। हाँ, I think one of you just hold his mobile in front of the mic. Rajkumar. Now we got the slide. Side Hello. support, second number, dimension. वो सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअली इसमें भी। तुम ऐसा करो, तो मोबाइल में फोन करो किसी को, यशवंत को, नहीं तो इसको, किसी को फोन करो, नहीं तो राजकुमार को पूछ के फोन। तो हो ही गया और एक ही साइड है। चलो, क्या बताना चाहते हो उसको, दिखाई दे। हाँ, हेलो। जी सर। हाँ हाँ, बता। Side support, dimension 476 into 176 into 12 mm, cut 2 pieces. Next, assembly process, fixing with a headless nail. Fix the headless nail on all the face of side support of wood and tighten with vice that can fix each other. Next, thank you sir. हो गया? देखो पीछे जाओ एक जी बार, सर। पीछे दिखाओ एक बार। अच्छा, ये जो मटेरियल क्या लिया तुमने? वुड कौन सी वुड है ये? ये सर पहले हमने जो साइड पोर्शन है उसके किनारे वाले भाग पे, टॉप वाले भाग पे नेल को फिक्स किया चारों तरफ से, छोटे हेडलेस नेल। ये वुड कौन सा वुड है? वुड नहीं, कौन सा? प्लाईवुड है, जस्ट सॉलिड वुड है? बोर्ड है सर। बोर्ड है। तो बोर्ड है तो बोर्ड इसको है
तो बोर्ड को इतना ये इतना प्लेन क्यों दिखता है, इतना स्मूथ क्यों, कैसे हो गया बोर्ड? हाँ, बोर्ड के ऊपर सनमाइका ऑलरेडी लगा हुआ था सर। तो लगा हुआ था जी। तो फिर जोड़े पहले जोड़े से कैसे? जो अपना ये बैटरी कवर तो नहीं लगा था पार में, पार लैब में सर। हाँ हाँ, उसी को बनाया सर काट करके। अच्छा, ओके। तो वो जो कल हाथ को बोला था छेद करने के लिए, छेद हो गया? हो गया सर, हो गया, कल ही कर दिया। टेस्टिंग हो गया? 6 तरफ से होल कर दिया जी। कौन सा 6 साइज तरफ से होल कर दिया। साइज क्या था? साइज का 80 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 100। कैसे काट किया, क्या 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 इस्तेमाल किया था काट करने के लिए? हाँ सर, पहले मार्किंग किया परकाल से, उसके बाद में एक जिगसा आता है सर। तो जिगसा जाने के लिए अंदर पहले एक होल किया ड्रिल मशीन से, ताकि उसमें जिगसा का जो कटर है वो आसानी से चला जाए। फिर उसके बाद में उस पर रख करके ना वो अपने आप नीचे ऊपर रनिंग करता है, फिर उससे घुमा घुमा करके गोल कटिंग कर देते हैं। अच्छा, तो फिर ये शार्प एज को कैसे ये किया? शार्प एज होगी ना जी, उसको क्या तो किया? उसको भी ऐसे कटिंग कर दिया जो शार्प हो गया ना काटने के बाद। हाँ, उसपे हाँ नहीं सर, बिल्कुल एकदम अच्छा काट देते हैं वो। उसपे कोई अनइवनेस नहीं आता है जी। थोड़ा बहुत होता है तो उसको एक फाइल होता है, फाइल से हाफ राउंड फाइल होता है, हाफ राउंड फाइल से मिला दिया, पूरे गोल कंप्लीट कर दिया। ओके, चल, थैंक यू। और कोई है क्वेश्चन? वेलकम सर। हाँ, यशवंत पूछना चाहते हो कुछ? नहीं सर। ओके, चलो आगे। राजकुमार कौन है अभी? राजकुमार कहाँ चले जाते हैं? सर नेटवर्क इशू है सर, बारिश हुई है ना आज। सर वेल ये प्रेजेंटेशंस तो हो गए सारे। हाँ, बट उनको बुलाना पड़ेगा ना मीटिंग में। मैडम चेक मैम भी आना चाहती है सर। राजकुमार फोन लगाओ एक बार। हाँ सर, लगा रहा हूँ सर। आ गए सर। हेलो हेलो। हाँ, कहाँ चले गए थे? वो कट गया, मैम का फोन आ रहा था, ये संगीता कली मैम का, तो दूसरे लिंक पे ज्वाइन कर लिए थे, तो अभी फिर वो उनका। अच्छा, तो अभी हो गया प्रेजेंटेशन अभी आ गई। हाँ, मैम आ गई अभी। ओके, मॉर्निंग संगीता। हाँ, चलो शुरू करो। अभी मीटिंग में क्या हो गया? अच्छा, तेरी मैम भी आ गई? मैम शायद अभी नहीं आई है। ये आ गई है सत्यवती मैम? हाँ, सत्यवती मैम आएंगी और ये कल्पना जी भी आएंगी। अभी क्या डिस्कशन करेंगे? अभी ये एक्चुअली में जो टेस्टिंग हो गया, बिना का ले लेते इंदर के, सब नहीं आए थे उन लोगों ने। अभी तो आए नहीं। इससे तो आ गया तो मैंने डाल सर। मैंने कहा वो लोग तो 11:30 बजे आएंगे ना, 11:30 बजे मीटिंग है ना। ये 11 बोला ना? 11 से 12, 12:30 है, 12:20, 25। अच्छा, 11 to 12, क्योंकि मुझे नोटिस तो 11:30 का याद है। हाँ, 11:30 हुए, 11:30, 12:30 तक होगा 11 से। नहीं, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। जहाँ तक मुझे ध्यान है 11:30 का टाइम था। मेल क्या भेजा तुमने? 11 to हाँ 11 सही है, 11 to 12:30 ठीक है। हाँ, 12:30, 11 to 12:30। हाँ, मेरे को 12:15 को निकलना है, तो मे बी इफ यू कंटिन्यूअस, मे बी संगीता में कोऑर्डिनेटर मीटिंग जो बचेगा इनकेस।
हाँ, तो अभी राजकुमार बोलो क्या करोगे? जी अभी सर ये वर्मी कंपोस्टिंग का है, उसमें जैसे सरस्वती है मैम तुम्हारा है ही नहीं ना अभी तक। हाँ अभी आए नहीं, बस 11 बजे ज्वाइन करने वाले थे ये लोग। तो अभी बस 1 मिनट वेट कर लेते हैं, इसको बोल देता हूँ। ऑफिस आए हो आज? नहीं सर, अभी तो बारिश हो रही थी, नहीं आया अभी, इसलिए घर से ही कर रहा है। के बापट मैम भी आ गए। गुड मॉर्निंग मैडम। डॉक्टर बापत गुड मॉर्निंग। हाँ ही नहीं। विनय विनय गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बापत हाँ मैडम भी आ गई है। तो कल्पना को फोन लगाओ आज इसको। ये तो बोलो तो विनय का पहले ले लेते हैं। क्या बोलती है? So can we speak? Am I audible? You are audible. You can speak, but we are waiting for Satyavati and Kalpana, जो दोनों इसका प्रोजेक्ट का पीछे है ना, वर्मी कंपोस्ट। हाँ क्या करूं? अच्छा क्या करोगे बताओ? हेलो, हाँ ये कल्पना जी भी आ गई है, ये मैम से बात कर रही है अभी सर। शुरू करो दिन तक के। मैम आ गई थी जी। हाँ कल्पना मैम आ गई। अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड तो दे दो, फिर मैडम वापस एक्सप्लेन करेगी एंड देन कल्पना के। हेलो। अच्छा 5-10 मिनट लगेगा क्या उनको? बट कल्पना को बोलो आने के लिए। ठीक है आप तब तक शुरू करिए, ठीक है ना, करते हैं। ओके। तो राजकुमार तुम थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दो, क्या इंटरेक्शन हाँ बैकग्राउंड देता क्या हूँ। होगी, फिर मैम कितनी बापत मैम विल एडवाइस एंड देन कल्पना विल। ठीक है सर, मैं एक ये थोड़ा सा स्लाइड है उसमें फोटोग्राफ्स में दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। एक जैसे सर अभी जो हमने बनाया था वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट को, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस था कि जो मैम भी बोली थी कि जो भी मॉडिफिकेशंस है ये सब करके कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर अब मैन्युफैक्चरर को देना इसके लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक जो सामने में विंडो दिख रहा है सर, तो कहाँ विंडो? ये वाला सामने में ये विंडो जो दिख रहा है ना, 3 इस साइड में लेफ्ट में, 3 राइट साइड में। स्लोली देखो तुम्हारा कार्ड। हाँ ठीक है। हाँ 3-3-6 दूसरे वाले एक, और बैक साइड वाला ये है, बैक साइड में उसी के पैरेलली मतलब इन फ्रंट बैक साइड में भी सेम 6 डाला है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। और उसके सामने में जाली एक लगाया है कि कोई उसमें छोटा मंगूस या कोई दूसरा उसमें घुस नहीं सके, जो कीड़ा को खा ना सके। और दूसरा था कि इसके नीचे जो एक्चुअल फोटो देखेंगे ना सर, ये वाला फोटोग्राफ्स है, तो इसके नीचे में ये है ना, ये वाला ट्रे, वो जो वाटर का वर्मी वाश कलेक्टिंग ट्रे है, तो हमने पूरा कंप्लीट एक डाला था, उसको बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग कराया 2 करा दिया कि इजी वे में आराम से हम निकाल सकते लगा सकते हैं, तो वो किया था। तो हाँ, तो उसमें जो फीडबैक आया है कि सारा जीआई जो कोटिंग है ये तो अच्छा है, इसमें तो कहीं रस्ट वस्ट कुछ नहीं आया, लेकिन जो हमारा ये ट्रे है, ट्रे नीचे वाला वर्मी वाश कलेक्टर वाला, तो
उसमें थोड़ा सा रस्ट आ गया है, क्योंकि उन्होंने ये इसमें जीआई नहीं कोटिंग किया था। उन्होंने जस्ट एक सीट लिया था, जीआई सीट लिया था, जहाँ पे बेंड किया तो कुछ शायद हो सकता है उसका कोटिंग निकल गया हो, तो ये एज में थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको कोटिंग। तो अब ये हम बोले कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको डीप करेंगे तो नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम। तो ये स्टिकर भी हमने निकाल दिया था पूरे तरह से, तो अच्छा से मतलब ये हो गया है। और इसमें सर जो हमने इसका टेस्ट किया अभी 60 डेज के लिए, तो ऑलमोस्ट अभी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन ये 60 डेज में कल्पना जी जो बोल रही थी कि हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। और कंपोस्ट भी अच्छा बना है। जैसे ये देखिए, कंपोस्ट बनने के बाद ये है, अभी क्या करेंगे इसको सुखा करके और इसको छन्नी से छानेंगे, तो मीन्स वो ग्रेनुल्स टाइप से छोटा छोटा बन जाएगा सारा इसका। तो ये मॉडिफिकेशंस भी इसका हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ड्राइंग ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग वाले को दे सकते हैं इसको कोटेशंस के लिए। जैसे मैम बोली है कि एक पुणे में और एक दिल्ली का जो मैन्युफैक्चर है उसको 10-10 के लिए मैम कुछ बोलना चाहती है मैम को, फिर बाद में जैसे जी बापू आप कुछ कहना चाहती है? Hello. हाँ आपके, हाँ बोलिए। Yeah, see, some of my bullet points, क्योंकि ये इतना अच्छा है, ठीक है, 7 दिन में ये भी जा रहा है। हम लोगों ने बेसिकली भी लुक फॉर दी डंग वर्मी कंपोस्टिंग, बिकॉज हमारी डिमांड वो थी, राइट। बट व्हेन वी आर लुकिंग द वर्सेटिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, how can we means take it ahead, because as the ministries are very much interested in, so we need to also be very specific about its uses or its instruction, because then they will be able to take it up. Now two things are there. One is that I would request the team or the Rajkumar and other experts also, Dr. Kalpana, Dr. Satyavati, because they are the experts from the field. So one is that we need to compare with the existing methods of vermicomposting. Maybe it is dung ho, if it is any waste kind of a thing, organic waste ho. Let us understand that, and how can we add on to that, because why should we buy all these things if the zameen available hai to? So let us understand that, and then we can promote. Jagah bachti hai, ye wo sab to theek hai, but we need to be very specific when we are doing it. Number one. Number two, ये भी एक हो सकता है कि क्या हम लोगों ने ये जो डिजाइन किया है, is there any possibility of maximizing the space utilization? Is there any dead space is there, or anything we can how can we use it? If it is possible, please look into that also. And who are the beneficiaries, where we are targeting this our vermicomposter, standalone vermicomposter. So we need to also correlate with the waste generation, the time of waste decomposition, and the sizes, so that we can give it to them as demand is there. Supposing अगर ये जो हमने बात की थी, today also we discussed with Rajkumar, जब मैं ये कोरा में देखती हूँ कि हर काऊ दिन में कितना डंग देती है, तो द रेस्पॉन्स वाज अराउंड 30 to 40 kgs देती है। इसका मतलब है अगर आपका एक ट्रे एक काऊ के लिए एक दिन में चला गया, if I believe in that, but experience could be different. Yeah. मैम 10 kg अराउंड है, मतलब 10 kg पर डे। नहीं कोई बात नहीं, गेट इट वेरीफाइड। व्हाट आई मीन टू से, ये एनिमल है, हर एक का अलग अलग हो सकता है, because that is what I am saying. Internet से you try to get information which may not be proper also. So keep all these options open. Case to case things will be different. अगर 10 kg दे रही है तो आपका एक काऊ का 4 दिन के लिए हो जाता है। I mean, you look at the size and for whom it will be useful. Plus, just compare and ask Dr. Satyavati or Dr. Kalpana कि suppose अगर as पंचायत राज मिनिस्ट्री was telling कि अगर वो लोग गांव के weekly market या मंडी या हाट में लगाना चाहेंगे ये, so that their waste is also tackled properly. तो अगर वो हिसाब से ज्यादा अगर ये हमारा वेजिटेबल या फ्रूट रिलेटेड वेस्ट होगा, तो उसके लिए तो 2 महीने की जरूरत नहीं होगा।
सो वो केस में आपका क्या हो सकता है? बिकॉज दिस इज अ वेरी वर्सटाइल काइंड ऑफ अ थिंग यू हैव मेड. सो माय simple submission to all these members who are present today and the experts who are present today in the meeting to look at the thing and give me the it could be a product specification and where it can be used, how it can be used. See, range can be different, case to case it will be different, and then we can have this possibility of designing it as per the requirement. Even we can target cooperative societies. Mohallas, can we look into that? And then what we can do is from our PSS office or from your inputs also, that Swachh Bharat mission में कुछ fund हो सकता है, तो we can pass this information there. क्योंकि उसमें अगर वर्मी कंपोस्ट मिला और बाकी का कुछ भी नहीं करना, अपने जमीन में वो डाल दिया, तो fertility will increase, at least good will happen to the soil health. So can we look all those things? Stop here, and I would request Dr. Satyavati, Dr. Kalpana to have their own opinions and guide them, so that strongly we can put it, because it is verified by you people, so it has the sanctity and it has the proper uska QC ho jayega. And another last point I would like to make is the compost, whatever Rajkumar हमने जो आपने इतना सारा samples किया है, is it possible to get it tested? You take Dr. Satyavati's input. Is it possible to get it tested, unka component and all those things, that nutrient or whatever you are having the supplementary content? I will stop here. Over to Dr. Satyavati. Thank you. Before madam say something, मेरा थोड़ा सा कुछ points है. मैम तो टेक्नोलॉजिकल चीज तो बताएंगी. मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी जो है ये हॉर्स डंग के लिए बनाया गया है, इट इज वर्किंग फाइन. बाकी जो टेस्टिंग जो है मैम विल सजेस्ट दैट वी डन. बट आपने बाकी जो मुद्दा जो आपने उठाई, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स है, ये है. नाउ द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्किंग अस टू आंसर, प्रोबेबली वी शुड नॉट थिंक ऑफ गिविंग दोस आंसर. फॉर एग्जांपल इसका फील्ड अवेलेबल है तो इसको क्यों यूज करें? ऑब्वियसली इसका यूज वहां से शुरू हुआ जहां पे फील्ड नहीं मिल रहा था और जहां पे इसको डिस्पोज करने के लिए भी कोई तरीका नहीं मिल रहा था. तो ऑब्वियसली दैट एरिया इज अंडरस्टूड. हम ऐसा खुला जमीन में जाके ये नहीं बोलेंगे जो जमीन में आप वर्मी कंपोस्टिंग ना करके हमारा लेके करो, ना. तो प्रोबेबली वी शुड टीच इन जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है. और बाकी जो है वेस्ट से वेजिटेबल्स वगैरह होगा, आई एम श्योर दैट सत्यवती मैम विल गाइड अस दैट वेदर इट रिक्वायर्स एडिशनल टेस्टिंग, और इसी से ही शी कैन से दैट हाँ काउ डंग से हो रही है, सॉरी हॉर्सेस डंग से हो रही है, तो मतलब उसमें भी हो जाएगी. तो दैट पार्ट में भी सत्यवती मैम कैन point out. Yeah, Satyavati ma'am. Dr. Shah, I completely agree with you, but when we are taking all these things to ministry or any higher level, na, we can be और कुछ भी अगर हमने जमीन की भी बात करी तब भी उसमें because we are having some 3 layers, so उसका capacity जो एक ही बेड में उनका लगता है ही जाएगा ना. will be in one time, because अगर ज्यादा decomposition को time लगता है तो same time पे volume you will increase. अच्छा, ठीक है. Okay, maybe you are right. तो मैं what you said is very correct, but we can specify जो जिसको चाहिए वो ले सकता है, कोई problem. ये मैं बोल रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, Dr. Satyavati. नमस्कार मैडम, नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू. ये जो हम लोगों ने जो बनाया इस पे जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा आइडिया आया कि क्यों बनाना है, तो ये था कि जगह नहीं है जहाँ पे, और वर्टिकल में, क्योंकि हम बहुत जगह की ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेस रिक्वायरमेंट, ये थॉट आई थी, विचार आया था कि बनाना है. क्योंकि अगर जगह है तो इस तरह का बिल्कुल ही फीजेबल नहीं है, ये तो बिल्कुल भी फीजेबल नहीं. अगर जगह जिनके पास है, क्योंकि आधा मीटर के हाइट रखनी है कंपोस्ट यूनिट की, प्रॉपर एरिएशन चाहिए और थोड़ा पानी का साधन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसमें, तो बड़ी आराम से वर्मी कंपोस्टिंग चलता है. लेकिन ये बात आई थी कि हमें कटरा में करना है और वहाँ पे हमारा जिस तरह का वेस्ट है वहाँ पे जगह की कमी होगी, तो वर्टिकल सिस्टम हमें डेवलप करना है. तो उस तरह से बात शुरू हुई थी. अब रही बात ये वर्टिकल सिस्टम में, बिल्कुल हम मानते हैं क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से हमारा इकोनॉमिकली वायबिलिटी होनी चाहिए यूनिट की, भाई हमारा खाद कितने बन रहा, उसकी कॉस्ट कितनी आई और हमारी लागत कितनी आएगी, वो बहुत जरूरी है. तो वो अभी कैलकुलेट कर, अभी कल्पना ने शायद किया और हमें अभी डेटा बताया नहीं कि कितनी खाद, बता 70%, 60-70% तो कन्वर्जन होता है, ये कोई भी वेस्ट खाद का इसमें होता है.
और अगर लिग्नोसेलुलोजिक ज्यादा है तो खाद बनती ज्यादा है, क्योंकि लिग्निन डिग्रेड होता नहीं है। तो अपना जो हमारा म्यूल वाला जो वेस्ट उसमें लिग्निन ज्यादा होता होगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई कि कंपैरिजन अगर हम कहें काउडंग का या पे बफेलो का या फिर हम म्यूल का करें तो दोनों की कंपोजिशन केमिकल एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना किस में लगेगा। तीसरी चीज, अगर हम किचन वेस्ट की मैडम आप बात कर रहे हैं कि किचन वेस्ट को बिल्कुल कम समय लगेगा, क्योंकि किचन वेस्ट जल्दी सड़ जाता है। तो ये जो डिग्रेडेबिलिटी के जो टाइम पीरियड है वो तो डिपेंड करेगा वेस्ट के ऊपर। रही बात इकोनॉमिक्स हमें वर्कआउट करनी पड़ेगी। तीसरी बात ये भी थी कि हम जब ये कर रही थी कल्पना से मैंने पूछा कि ये यूनिट है तो कहाँ के लिए सुटेबल हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सफोकेशन नहीं होना चाहिए। इसकी टेम्परेचर मैंने फिर को बोला कि थर्मामीटर रखो, उसमें टेम्परेचर आइडियल कंडीशन अर्थवॉर्म्स के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं हुई तो अर्थवॉर्म तो खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी रिपोर्ट मेरे ख्याल से वो अभी एनालिसिस भी नहीं हुई। मैंने कंटिन्यूअसली आस्किंग की रिपोर्ट जो एनालिसिस हुई है उसमें देख लेते हैं कि क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन कल में देख रही थी रिपोर्ट जो आई है कि बफेलो मतलब किचन बेस के साथ आपका कैटल डंग है, फिर किचन बेस है और कैटल, इस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं आई। हालांकि मैं ऑन द बेसिस ऑफ द सब्स्टिट्यूट में कह सकती हूँ कि किचन वेस्ट और आपका जो काउ डंग उसका बेस्ट कंपोस्ट बना होगा, बनना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस, क्योंकि कंपोजिशन हमारे वेस्ट क्वालिटी जो कंपोस्ट है डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को देखते रखते हुए मैडम ये फिजिबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी वर्कआउट करना, और किस तरह के एरिया के लिए होगा, जहाँ जगह की कमी है वहां के लिए तो काम करेगा, लेकिन इसका यूनिट प्रॉपर अभी टेस्टिंग की जरूरत है। अभी कल्पना से मैं बात कर रही थी, बोले कुछ वहां पे वो कुछ रैट्स आ गए, कुछ खा गए, तो क्वांटिटी उतनी नहीं कैलकुलेट सही नहीं हो पाई कोरोना की वजह से। तो आई वाज रियली वरीड अबाउट दैट कि हमें पूरी ऑथेंटिक डेटा चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए बेस में। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अभी रिपोर्ट जो हमारे कई सारी चीजों को लेके चलेंगे तो तब पता चल पाएगा मैडम कि इसकी क्या मतलब है इम्पोर्टेंस, किस जगह हम कहाँ बता सकते हैं किस तरह का आएगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। Hey, Dr. Satyavati, before I leave, can I take just 2 minutes of the हाँ लीजिए जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे ये लग रहा है ये हम लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीजन प्रूफ है, क्योंकि अगर आप कहीं भी अगर खुले में वर्मी कंपोस्टिंग या कोई वेस्ट से करना है तभी आपको कुछ शेड वेड बनानी पड़ेगी, ओपन में नहीं कर सकते। और देखने में भी इतना सुंदर बनाया है कि यू नो इट जस्ट एटलीस्ट सूटेबल फॉर इवन अर्बन एरियाज जहाँ पे आपको ये हो सकता है। तो मेरा ये सब पूछने का लक्ष्य यही था, क्योंकि अभी देखो गवर्नमेंट के पास निधि होता है या दूसरा कुछ स्कीम्स होता है। सो दिस काइंड ऑफ यू नो टायर सिस्टम फॉर वर्मी कंपोस्टिंग was not seen by anybody. I mean, whenever I am asking people, तो अगर ये हम लोग उनको एक पर्याय दे रहे हैं तो जिसको देना है करे। और हार्ट के लिए ये इतना उपयुक्त है कि वहीं के वहीं उनका हार्ट का पूरा ये जो हम लोग अभी नेशनल मिशन फॉर वेंडिंग कार्ड भी बना रहे हैं, तो कोई अगर कूड़ा करकट ही नहीं रहे, एक अच्छे से बॉक्स में आपका सब ढल जाए, मोबाइल भी है, तो इट विल बी वेरी गुड। सो माई रिक्वेस्ट टू कमिटी कि अगर हम लोग अगर वेस्ट के लिए, किचन वेस्ट के लिए बोल रहे हैं तो आपको शायद इतना बड़ा नहीं भी लगेगा। You can have that thing, you can take the opinion of the people or the experts input and you can make a standalone unit which will be cute सा हो, जिसमें आप ये भी सोच सकते हैं उसके बारे में, no problem, because this concept has come out very well. The data, whatever the preliminary data shows very promising result, I would say. And in spite of having corona and all, still this team could go and collect the sample. ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात रखती है, क्योंकि इन्होंने ये सब कर दिया है, सब ये पैशन से किया है, तो उसके लिए भी मेरा सैल्यूट है पूरे टीम को। तो ये अभी हम लोग जो संगोष्ठी करेंगे, वी पिन पॉइंट, नोबडी इज टेलिंग यू कि आपने ये क्यों बनाया, वो हिसाब से हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग किस तरह से आगे उसको ले जाए, बिकॉज द वे MOPR has shown the enthusiasm. Because in the ministers meeting में I was there, तो सेक्रेटरी तो इतने उल्लासित थे कि उन्होंने बोल दिया कि ये सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज डन, टेस्टिंग इज डन, तो वी जस्ट हैव टू अडॉप्ट। मींस ही वाज सो अग्रेसिव टू गेट इट अडॉप्टेड। तो इसके लिए मुझे ये लग रहा है कि सिंस आप सभी लोग एक्सपर्ट है, ये जाने माने फील्ड के हैं, तो माय रिक्वेस्ट इज हाउ बेस्ट वी कैन डू। वी हैव गॉट लकीली 2 फैब्रिकेटर्स, वी कैन डू एनीथिंग। हमारे पास रूटा के पास पैसे भी है, अगर छोटे भी कुछ करना पड़ेगा या कुछ है तो इनिशियली
वी मे लाइक टू प्रपोज टू मिनिस्ट्री कि एक पायलट पे 2-3 जगह पे आप एक बार टेस्टिंग करें हमारे साथ एंड देन वी कैन डू इट। इस तरह से भी हम लोग प्रपोज कर सकते हैं। सो आई विल लीव फॉर अनदर मीटिंग एंड प्लीज आप बिल्कुल बेझिझक ये करें, वेरी फ्रीली करें। या नहीं, आप जाने से पहले बस सिर्फ मैं यही सजेशन दे देता हूँ, जो अपने 2 वेंडर हमने ढूंढ रखा है, तो हम दोनों वेंडर से 2 बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होगा, तो उनको भी थोड़ा सा प्रिपरेशन हो जाएगी कैसे बनानी होती है, बिकॉज जो नया वेंडर है उसके लिए 2-4 इटरेशन लगेंगे शायद। एंड इफ देयर आर यूनिट्स टू प्लेस इट, वी विल डू इट, अदरवाइज हमारे जो माइक्रो मॉडल में टेस्टिंग कर रहे हैं कर लेंगे, उसमें और थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेंगे, सो दैट वी आर रेडी टू डिप्लॉय एनी अदर प्लेस। सो आई वुड सजेस्ट टू गो दैट वे। Agreed, Dr. Saha. And even you can also look that a single modular अगर बनाना है vegetable के लिए या something like that. If you would like to set up a small unit for a heart, considering the heart में कितना wastage है, 5 to 10% wastage होता है, और अगर गांव के हार्ट में कितना वेस्टेज होता होगा, 100-150 kg, नॉट मोर देन दैट। तो वो हिसाब से अगर एक छोटा सा भी मॉड्यूल आप अगर करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, एंड विच इज स्टैकेबल और समथिंग यू कैन एड ऑन टू दैट विथ योर एक्सपर्ट दिस थिंग, एंड वी कैन टेक इट अहेड, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ सर, ये बलवीर सिंह। Yes sir. Thank you madam. Good morning sir. Good morning Balveer ji. Dr. Balveer Singh from Shri Mata Vaishno Devi University. Just now, like ma'am so that suggested to have that a construction of 2 or 3 units. So it is it is also that one suggestion is that like if we can fabricate the 2 or 3 units, and 1 unit we can put in the village, like here in Jammu Katra itself, and then we can see the result here as well as there also, just to see the what are the potentials of that project is there. So that is my suggestion to you sir. अच्छा सजेशन है आपकी एक्चुअली, बट इसमें मेरा एक एडिशनल सजेशन ये होगा, आपके पास कोई बनाने वाला है, बिकॉज इसे सिंपल वेल्डिंग और स्ट्रक्चर ही है ज्यादातर, नहीं? राइट सर। हम सपोज आप वहां से बना पाओगे और वहां पे टेस्ट कर लोगे, तो लोकल मैन्युफैक्चरेबिलिटी भी हमको डिलीवरेबल हो जाएगी। राइट सर। तो आप तो आप जो है हमारा जो यहाँ पे 2 वेंडर जो है, वेंडर से हमारे पास कुछ कोटेशन आया है, तो आपको पास आइडिया होगा कितना खर्चा होने वाला है। तो आप वहाँ का जो लोकल जो बनाने वाला है उसको पिक्चर दिखाओ, ड्राइंग दिखाओ, दिखा के बोलो जो कितना खर्चा होगा, तो मे बी उसी खर्चा से हम बना के जो टेस्टिंग आपको करनी है वहाँ पे कर लोगे लोकली। दैट विल बी नाइस। राइट सर। सो हम लोग जो ऑलरेडी जो हम वहाँ पे यूनिट बनाया हुआ है ऑन द सिमिलर पैटर्न पे, देन आई विल कांटेक्ट द लोकल प्लेयर्स, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट दैट विद द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, so then we can go for the fabrication and put up this setup in the local village also, because this university is in the midst, there is a village rural area only, और उसमें हम तो उसमें विलेज में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप कैंपस में भी कर सकते हैं। जब कैंपस में फिर वो ही चीज है कि हमें फिर जो वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि यहाँ तो किचन वेस्ट होता है, लेकिन जो जो है जो एनिमल वेस्ट है वो नहीं मिलेगा। सो एनिमल वेस्ट के लिए फिर हमें यही है कि या तो विलेज को अप्रोच करें, और यहाँ पे वेजिटेबल या फिर मैस वगैरह का ये बस यही वेस्ट है, तो ये एक इशू आएगा सर। ठीक है, तो आप ठीक है विलेज में चलिए। तो अभी मैम सत्यवती मैम को ये भी पूछना चाहूंगा कि दोनों जो अभी बनाएंगे हम एक्चुअली मेरा बोलिए। मेरा सजेशन ये गांव के लिए तो मुझे नहीं इसकी फिजिबिलिटी लगती है। गांव के लिए तो जगह होता है उनके पास, तो ये इतनी महंगी चीज क्यों रखना? गांव के लिए डॉक्टर साहब नहीं काम करेगा ये, ये तो काम करेगा शहरों में, और जहाँ जगह की कमी है उसके लिए ही बहुत अच्छा यूनिट रहेगा ये। शहर पे होगा। और जो हाट का बात कर रहे थे, हाट में वहाँ काम करेगा ये। बाजार में मार्केट में उधर जहाँ पे मतलब इसका एक कॉम्पैक्ट सिस्टम रख दिया और वेस्ट मटेरियल मतलब उसका हम बना रहे, तो वहाँ पे काम करेगा, गाँव में नहीं काम करेगा, कोई अडॉप्ट ही नहीं करेगा गाँव में। बताओ चलेगा नहीं गाँव में ये, तो गाँव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनाना ही नहीं चाहिए, गाँव में तो दिक्कत। गांव का छोड़ देते, अभी जहाँ पे हाट होगा अर्बन सेटअप में जो रिक्वायरमेंट आएगी हम दिखा सकते हैं। बट अभी जो इम्पोर्टेंट चीज मेरे अंडरस्टैंडिंग में आई है, किचन वेस्ट के लिए और बाकी के लिए भी टेस्टिंग करानी है। तो अभी इसमें जो काउ डंग करके टेस्टिंग कराया गया था, तो इसको हटा के किचन वेस्ट का हम ट्राई करें क्या इसी यूनिट में?
नहीं किचन बेस का कराया ना, नहीं लगाया हुआ है ना? जी जी मैडम, किचन वेस्ट के साथ जी, किचन वेस्ट इंडिविजुअल भी है, किचन वेस्ट होस डंग के साथ कॉम्बिनेशन में भी है और किचन वेस्ट काउ डंग के साथ कॉम्बिनेशन में भी है। 3 तरह के किचन वेस्ट के हमने ट्रीटमेंट्स लगाए हैं इसमें। तो डेटा नहीं आया ना, रिपोर्ट नहीं आई क्या एनालिसिस का? क्या है? मैम लेट नाइट आई थी तो मैंने मॉर्निंग में शेयर करी है, तो आप लोग देख नहीं पाए होंगे। अच्छा, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इन दैट केस। मैं भेजो ये वाला, क्योंकि किचन वेस्ट का मतलब 1 महीने 1.5 महीने से ज्यादा नहीं लगता है। हाँ जी, हाँ जी मैडम। एक्सप्लेन कर दीजिए मैम को भी, हम भी सुन लेते हैं एक्चुअली। ये मैम आपने ये डेटा दिया, 1 मिनट। MS वर्ड में था वो वाला। हाँ, वर्ड भी दिया है आपको, एक प्रेजेंटेशन फाइल भी है लास्ट में 2 स्लाइड्स में। हाँ, मेरा एक और सजेशन डॉक्टर साहब है कि अभी जो दूसरा हम लोग बना रहे हैं ना, तो उसमें जैसे अपना जो पानी का स्प्रेयर है उसको थोड़ा बड़ा पूरा ट्रे के ऊपर आना चाहिए, अदरवाइज वो ठीक से खादी नहीं बनेगा। तो कल्पना को करवाना था ना, हमने तुम्हें बताया था कि जो पूरा पानी का जो है ना, हाँ पूरा एरिया को कवर करना चाहिए ना, पूरा सिस्टम वो नंबर होना चाहिए ना, वो इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी। स्प्रेयर लगेगा वो उसका डिफरेंट टाइप का लगना है। हाँ, तो वो इम्प्रूवमेंट जो मैंने बताया बहुत जरूरी है उसमें, है ना, क्योंकि टेम्परेचर वाटर बहुत जरूरी है, दोनों मेंटेन होने चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर जो है ये हम अलग अलग जाके थर्मोमीटर से मेंटेन करते हैं कि उसका अंदर थर्मोमीटर लगा रखा है राजकुमार? नहीं डॉक्टर साहब, है ही नहीं थर्मामीटर। मैंने बहुत बोल रही हूँ कि थर्मामीटर अगर उसमें लगा के लटका दे, मिले ही नहीं। लेकिन तो हमने अपनी लैब का ये ले जाता है राम कुमार, कुछ देर पहले रख लेता है वहां पे, तो एम्बिएंट टेम्परेचर जो आता है वो रिकॉर्ड कर रहा है, इस तरह से कर रहा है वो। तो मेरे ख्याल से ना एक डिजिटल टाइप का खरीद के अंदर से लगा दो एक्चुअली। हाँ, वही मैंने बोला था। पीक समर का जो टाइम होता है ना, जैसे आफ्टरनून का 12 से 4 के बीच में हम लोग मेजर करते हैं कि बाहर के में और अंदर के में कितना डिफरेंस है। अभी तक तो ऐसे किया है। हाँ, उसमें लगाया एक स्टेप का 12 to 4, बिटवीन 12 to 4। चलो एक करके चलते। पहले कल्पना मैडम को थोड़ा सा डेटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम दे दो। मे बी कल्पना मैम यू स्पीक फॉर इट। ठीक सर, मतलब डेटा में एग्जैक्ट नहीं मानूंगी क्योंकि बीच में बहुत सारे इश्यूज आए थे अपार्ट फ्रॉम लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन। जो हमारे मैंगूज थे वो काफी सारे अर्थवर्म्स को खा गए थे। अब ये एग्जैक्टली नहीं पता कि किस में से कितना खाया। अच्छा, तो इधर के बोले तो दोबारा शुरू करें एक्सरसाइज। हाँ सर, एक सेट हमको फिर से लगाना रहेगा इसमें, तो एक ट्रायल फिर से लगेंगे। लेकिन जो अभी डाटा आया है राजकुमार जी वो शेयर करेंगे स्लाइड जो है, या शेयर करो राजकुमार। हाँ, ये एक वर्ड वाला है ना? हाँ, ये वर्ड वाला देख लिया है और एक 2 स्लाइड का ये दिख रहा है, चारों पैरामीटर का दिख रहा है मैम? बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा करोगे राजकुमार? स्लाइड तो दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है, थोड़ा फॉन्ट साइज आई कैन नॉट सी। हाँ मैम, अब दिख रहा है मैम? हाँ, स्लाइड दिखा दे एक्चुअली, बट इज इट द सेम स्लाइड कल्पना सेन? यही स्लाइड है। हाँ, होस्ट डंग में मैम इनिशियल कार्बन परसेंटेज जो था वो 40% के आसपास था। अच्छा, है ना। और काउ डंग के अंदर वो था इनिशियल जो था आपका 0 डे पे जो हमने मेजर किया था 31%। हाँ, और किचन वेस्ट का था हमारा 35-36 ऐसे था। और आफ्टर जब हम इसको चले 63 डेज के बाद 21 डेज पे, लगभग 21 डेज पे सैंपल्स हुए, 21 डेज पे, तो 63 डेज मतलब 2 महीने के बाद में 19.8 के आसपास जो रिडक्शन आया है होस्ट डंग वाले में आया है। और काउडंग में? काउडंग में मैम 22 आया है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब कम होना चाहिए काउडंग में मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि लेकिन अब अर्थवर्म्स का नहीं पता किसमें कितने थे और वो नंबर सारा डिसअप्रोप्रिएट हो गया। एक बार पानी का भी, वाटर लॉगिंग भी काफी हो गया था बीच में। नहीं, रिडक्शन किस में ज्यादा आया? रिडक्शन किस में ज्यादा आया? मैम रिडक्शन अभी होस्ट डंग में ज्यादा आ रहा है। होस्ट डंग और किचन वेस्ट का कॉम्बिनेशन हमारा बेस्ट आ रहा है मैम।
रिडक्शन के कंपेयर उसमें करें तो। नहीं वो तो अभी फिर देखना पड़ेगा ना, दोबारा से ठीक से करना पड़ेगा ना। वो हॉर्स डंग का और काउ डंग का लिटरेचर में देखा है तुमने कि कार्बन कितना होता है, सेलुलोज हेमिसेलुलोज, लेकिन नहीं कुछ देखा है क्या दोनों में किसमें ज्यादा होता है? हालांकि वो जो हेमिसेलुलोज और लिग्निन तो नहीं देखा, लिग्निन का इसमें ज्यादा होता है आपका, होस्डंग में ज्यादा होगा, लेकिन होस्डंग के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट भी ज्यादा था कार्बन उसमें काउडंग के। हाँ तो नहीं हो सकता है वो ज्यादा बने, सीएन रेशो के डिपेंड होता है ना रिडक्शन जो है। सीएन रेशो अगर बढ़िया है तो होस्डंग में अच्छा बनेगा फिर तो। हाँ तो होस्डंग में मैम नाइट्रोजन कंटेंट काफी था हमारा। एक बार और लगाना है ना सेट तो से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन कल्पना किचन वेस्ट में तुम्हारा 2 महीने नहीं लगना चाहिए, तो 1.5 महीने के अंदर पूरा बन जाना चाहिए अच्छी तरह से। 1-1.5 महीना लगता है अच्छी तरह से अगर डालेंगे ना तो चॉप करके। हाँ जी। मैम वो बीच में आपको बताया ना, कुछ तो मॉनिटरिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाई, कुछ 1-2 बार वाटर लॉगिंग भी हो गई थी, तो उस वजह से भी। इससे पहले वाला स्लाइड दिखाएंगे राजकुमार जी, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट है हमारा। ये वाला नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट। हाँ ये वाला नीचे है। ये वाला नहीं इससे ऊपर वाला। इसमें हाँ जी मैम। हाँ तो मैम ये किचन वेस्ट और होस्डंग में हमारा नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है, इनिशियल वाला भी, और काउडंग में थोड़ा सा। तो फिर तो डिग्रेडेशन उसी में अच्छा होगा ना, सीएन रेशो वो देखना है ना, उसके हिसाब से पता चलेगा। जी हाँ जी। तो ठीक है, अभी रिपीट करना है ना, एक बार और कर लेना। ठीक है मैम, ठीक है। फास्फोरस पोटेशियम भी किया है क्या? मैम पोटेशियम और फास्फोरस के अभी रिजल्ट नहीं आए। अच्छा, और एटॉम की काउंटिंग वो भी अभी दोबारा करोगे तब पता लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोबारा पता चलेगा। जी। तो डॉक्टर साहब हमारी तरफ से ये है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट जैसे बताया वो हो जाए, टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग जरूरी है और रिपीटिशन ऑफ है ना, तो जिससे कि केमिकल एनालिसिस हो, अर्थमम की नंबर काउंटिंग बहुत जरूरी है, देखना कि कैसे चल रहा है। तो ठीक है, बढ़िया है। मैं राजकुमार को बोल रहा हूँ ये सारे पॉइंट को नोट करे। बस मेरा एक स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन है, जो विंडो छोटे छोटे लगाया है उसके जगह में हम पूरा उसको नेट ही लगा दे, उसमें कुछ दिक्कत आएगा? किसमें डॉक्टर साहब कैसे? ये जो चेम्बर में, एक बार दिखाओ, एक बार राजकुमार फोटो दिखाओ, फोटो या ड्राइंग दिखाओ जो भी। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, बट चेम्बर नहीं दिख रहा है। हाँ चेम्बर। हाँ ये जो किया ना, दिखाओ एक बार, बीच में छोटा छोटा विंडो लगाया ना तुमने। हाँ ये वाला, ये कर्सर से दिखाओ एक बार। हाँ दिख रहा है सर। हाँ मैडम देखिए, लेफ्ट हैंड फिगर में वो जो दिख रहा है, तो उसके वो छोटे छोटे जाली लगाए ना, तो जाली का जाएगा में मैं थोड़ा सा कॉस्ट एस्पेक्ट में सोच रहा हूँ, छोटे काट के जाली लगाने में खर्चा ज्यादा होगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा चारों साइड से पूरा जाली लगा देता हूँ, पूरा ग्रिल लगा देता हूँ ना। मैंने वही बोला था डॉक्टर साहब, मैंने वही सजेस्ट किया था। हाँ पूरा और अच्छा वेंटिलेशन हो जाएगा, प्रॉपर वेंटिलेशन, एरिएशन और अच्छा हो जाएगा। अर्थवॉर्म को तो क्रॉस वेंटिलेशन पूरा खुला हुआ। अभी देखो जैसा कल्पना जी का पीछे कुछ विंडो दिख रहा है ना, जाली टाइप की ना, तो ऐसे ही लगा दे हम ना। बिल्कुल। तो राजकुमार ये नोट करो, बढ़िया हो जाएगा ऐसा। हाँ एरिएशन अच्छा होगा, एरिएशन बहुत, क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए अर्थवॉर्म को प्रॉपर। हाँ राइट, तो इसमें कॉस्ट भी कम हो जाएगा, हल्का भी होगा, राइट, बट नॉट फुल मेटल नहीं रखेंगे, फुल मेटल होगा तो भारी होगा, तो इसको थोड़ा सा डिजाइन मॉडिफिकेशन में याद रखना, ठीक है। बढ़िया रहेगा, वेट में भी फर्क पड़ेगा। हमने कल्पना यही सजेस्ट किया था ना, लेकिन बन गया था, तुमने कहा इसमें से अभी इतना ही हो पाएगा। आई हैड सजेस्टेड सेम थिंग। हाँ मैम, एक आगे से हम लोगों ने दिया था और पीछे से, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेरा कहना है, अभी जो एज पर द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और जो हमारे जो बजट हमने रखा था, तो ड्यूरेशन हमारी कब तक है राजकुमार? अगर धूप में मैम। हाँ बोलो। नेट का प्रॉब्लम हो रही है उसको। ये मार्च, अभी तो हम लोगों ने इसको रखा है 6 महीने एक्सटेंड किया, तो क्या 31 मार्च, नहीं मार्च तो चला गया, 31 मार्च तक था। हेलो, कोविड फर्स्ट के बाद हमने एक्सटेंड किया था इसको। हेलो, 31 मार्च तक था,
उसके बाद क्या किया था? उसके बाद फिर सेकंड वेव आ गया कोविड का। बट इंटरनली हमने कुछ डिस्कशन किया था, जैसा इसे स्थिति है ऑटोमेटिकली कुछ महीने तक एक्सटेंड करेंगे, तो वो बताओ राजकुमार कितने महीने तक करवाया था? अभी चेक करना पड़ेगा शायद इसको। जैसा आज इस मीटिंग का डिस्कशन हो रही है, तुम हमारे तरफ से कोऑर्डिनेट करते हो, तो ये तो तुम्हारे नॉलेज में होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है जो पीआई को बुला लिया और पीआई जो इनपुट देंगे, तुम्हारा भी तो जिम्मेदारी होती है ना हमारे ऑफिस से। यस सर, यस। तो बताओ ना इसमें क्या है, ढूंढने में टाइम लगेगा? नहीं। चलो जो भी है, मैं मोस्ट प्रोबेबली हमने 3 या 6 महीने आई करेक्ट थी, उसका तो ऑटोमेटिकली 3 महीने 6 महीने, तो जो भी स्टेटस होगा आई वुड से ये हमारा नेक्स्ट 2 जो बनाने वाला है उसके लिए हमारा वर्मी कंपोस्ट का दूसरा फेज लेके उसके लिए जितने टाइम लगेंगे और उसके लिए क्या खर्चा होगी ये बजट करके दूसरा प्रोजेक्ट हम बनाए। माय सजेशन सत्यवती मैम और कल्पना करें, ठीक है ना, इसको फेज 2 करके लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, उसमें दो चीज होगी। एक तो है कंटिन्यूएशन में एक्सटेंड होते होते रहेंगे, तो कभी ना कोर कमेटी में जब मीटिंग होगी, बाद इनका भी जो एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग होती है, तो बोलेगा अरे वर्मी कंपोस्ट बनाने में 6 साल लग रहा है क्या, एक्चुअली ऐसा बाई चांस कुछ लूज कमेंट्स कर देंगे। हमारा फर्स्ट फेज का तो कंप्लीट होके डेमोन्स्ट्रेशन करके अभी जो थोड़ी बहुत स्टडी बाकी है वो करके इसको हम निपटा देंगे। एक्चुअली सेकंड फेज का जो टेस्टिंग जो कराना चाहती है कल्पना अभी करके इस फेज का हम क्लोज करा देंगे। और जो 2 नया आइटम का बात चल रही है और कटरा में भी बनाने का प्लान चल रही है, तो इसको हम फेज 2 में लेके खर्चा वगैरह करके क्या टेस्टिंग होगी इसके लिए ये सोच के ये 6 महीने 8 महीने 1 साल जो भी होगी उसको बजट लेके फेज 2 में हम इसको आगे सोच के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो संगीता इज इट ऑल राइट? आई थिंक संगीता इज आल्सो सिटिंग देयर, ठीक है ना? ओके, तो राजकुमार और कुछ ये थोड़ा देख लेना, इसको 3 महीने है तो और 3 महीने एक्सटेंड करके ये इसको स्टडी को कंप्लीट करो और दूसरी जो बनाना है उसके लिए सेकंड फेज के लिए प्रपोजल उसका मंगा लेंगे सर। हाँ वो तो कर देंगे। हाँ ठीक है, तो उसमें जो भी करना कर। ओके, थैंक यू सत्यवती मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू है। पर आप बैठ के सुनना चाहेंगे तो वो भी क्या क्या बलबीर जी थैंक यू सर, थैंक यू सब फ्री हो। ठीक है, थैंक यू। ओके, मेरा दूसरी मीटिंग में डॉक्टर साहब मैं छोड़ लीव करूंगी, मीटिंग छोड़ दूंगी। अभी दूसरा बिजी रहना था मीटिंग। जो बिजी है वो जा सकते हैं, जो बिजी नहीं है रह सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आई आल्सो टेक परमिशन सर। ठीक है, ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट लेते किसका? विनय गुप्ता का। विनय, हेलो, तुम्हारा कोड में है बॉल, तुम। अच्छा, ओके, सूरज, अच्छा, लेट मी शेयर देन। हाँ शेयर करो। मैं चलो मैं करता हूँ सर। ठीक। Is the video is visible? Yes. So this is related to Bilva project. Earlier, what was happened that we have proposed the design of a machine setup. This was the setup which we were trying to manufacture. What actually I found that there is a problem with the mechanism holding the seats while it is breaking. So to overcome this problem, what we have decided to first go with the manual setup only. Earlier we have a manual idea which we have dropped to come up with the automized one. So again, just to thought as per the past experience also, so we thought to start with the manual part only. So we modified the manual design, which is now I will display in the video. First,
just observe the video, then I will explain. My screen is visible? Yes. So idea behind here is that we can put 12 Wilbur seats of different sizes. We have capped the different sizes of the slot to break the Wilbur, and we will use the power of legs to apply the force. Once the sheets are break, so there is a shield, you could see the transparent sheet over here, which will stop the splash of the oil towards the artisan. And once the seeds are broke, by using this lever, you can put all these seeds into the bucket through this tray, basically. So at a time, you can break 12 number of Wilbur seeds. So my idea is to first develop this manual setup, test it, and with the experience of this manual setup, then try with the automatized one. So I will now like to make this setup with some vendor or something. तो इसका खर्चा कितना आएगा पता लगा है अभी तक? अभी नहीं लगाया है सर। मैं राजकुमार जी को दिखाया था ये मॉडल अभी बताशा के टाइम पे, बताशा का भी डिस्कशन किया था मैन्युफैक्चर का, तो अभी इसका कैलकुलेट करके तो इसको बनाने का प्लान है अभी। तो इसको डिजाइन ये एनिमेशन वगैरह ये कौन किया है? ये मेरा जो स्टूडेंट जिसके संग हम कर रहे थे ना, पास आउट अभी वो पास आउट है, उसी के साथ कर रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट। अच्छा, और वो करता क्या, पास करके करता क्या अभी? he is working in a company. अच्छा, तो मास्क और इसमें वो ही काम कर रहा है अभी मेरे साथ, तो he is helping me all this. अच्छा, तो जूनियर स्टूडेंट कोई नहीं मिला अभी जो ऑनगोइंग? नहीं लिया था सर, but I could not able to get work from them, so अच्छा, so I am working with him only right now. अच्छा, नहीं ये भी एक आउटसाइड दिस डिस्कशन, तो ये भी एक आर्ट है, वो भी ढूंढना पड़ेगा, जब तक हेल्प कर रहे तो अच्छी बात है। तो ठीक है, तो इफ ही इज वर्किंग इन अ कंपनी, कौन सा कंपनी? वो तो अहमदाबाद वाला कंपनी वही वाला है? नहीं वो तो अहमद है, ये शेखर है सर जो मास्क वाला है, तो ही इज वर्किंग इन गाजियाबाद। अच्छा, तो एक काम करो, उसको भी बोल सकते हो इफ ही नोस, किस टाइप कंपनी में काम कर रहे हो? वो कुछ शीट डाई से रिलेटेड कुछ कंपनी। तो बढ़िया हार्डवेयर कंपनी में काम कर रहे, तो हो सकता है वो भी कुछ वेंडर निकल के दे दे, ठीक है। और एक एडवांटेज और है सर, अभी माय कॉलेजेस गेट ओपन फ्रॉम 1 जुलाई, तो माय वर्कशॉप में भी मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको बनाने का। हाँ, तो उसमें भी ट्राई करो, उसमें रॉ मटेरियल खरीद के दे दो उनको, प्रोजेक्ट से देके, ठीक है। आई विल डिस्कस। हाँ जी। और कुछ तुम्हारा कॉलेज का कंप्लेन नहीं है तो उनको कुछ ऑनरियम देना है तो हम दे सकते स्टाफ को भी, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज, तुम्हारा जो बंदा ने किया है वो भी शीट मेटल कंपनी में काम करना, मतलब हो सकता है आसपास में वेंडर भी होगी। और बिट्टू जो है हमारे जो शिप शेयरिंग बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपना शॉप लगा लिया इसमें ग्रेटर नोएडा में, तो ही हैज ग्रेटर नोएडा में ही है। हाँ, तो वो भी बिट्टू का नंबर होगा। हाँ, तो बिट्टू का नंबर ले लेना राजकुमार से, नहीं तो मेरे पास भी है, ठीक है। तो ही मे बी आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट। बाकी हमारे जो कांटेक्ट है एक एक करके ट्राई कर सकते हो, तो गो 1 or 2 एट ए टाइम। तुम्हारा कॉलेज का देख लो, और बिट्टू ग्रेटर नोएडा है तो वो भी दोनों को देख लो अच्छे, ठीक है। बाकी विल सी। एनी अदर कमेंट बाय एनीवन? I just wanted to say something. Please.
So it's nice to see this. Just that I thought the proposal to have a completely automated version Right. can. So what I was thinking was right now they are doing it completely manually and it's Right. all splashing on them, etc. Right. Probably we can have two versions. One version can be this machine which is manually operated machine, and the other can be the automated one, so that people so at whatever level people want to use it, they can use it. Because the moment we go for fully automated one only, the number one, the capital cost will be high, and then the skill is completely replaced. The manual work is almost replaced. So this is something which essentially takes away their livelihood from many people. So I thought we must keep both the options and see Okay. whatever is appropriate we should use, because we should not go for automation at all levels. So this is something which I personally feel. Yeah. I agree, संगीता. In fact, अभी तो ऑटोमेटिक की जरूरत भी नहीं है. That's my feeling. क्यों ऑटोमेटिक करने जाओगे? जब इसको हाँ डिमांड काफी बढ़ जाएगा, people है ना, तो पहले इस लेवल के लेके टेस्टिंग कर लो. If it is working fine and if someone is coming ये सर ये आपने अच्छा बनाया, इसको हमको तो और करना है because हमको आदमी भी नहीं मिल रहा है. So that point of time we just ये तो मोटराइज करने में just easy नहीं लगेगा. मैकेनिज्म एक मोटर ही लगा नहीं. हाँ, नीचे वो सिलाई मशीन होता है ना सर, जो उसी का बस सिलाई मशीन की कांसेप्ट है. और ये एक आईटी खड़गपुर ने भी मैकेनाइज ढेकी बनाया, तो मैकेनाइज ढेकी राइस हस्किंग मशीन, वो भी तुम ये में देखोगे ना. तो जो शिफ्टिंग वाली बात है वो तो फ्रीक्वेंसी उनको पता चल जाएगा ना, तो ऑफ करके और स्लाइड कर देंगे जो तुम्हारा लेफ्ट वाला जो चीज है ना, जो डिस्पोज करने के लिए. I think let us go to the manual and see how it functions, and then we can. Okay, any other point? No, sir. No? Chalo, thank you, Vinay. Chalo. Okay, thank you. Thank you. Rajkumar, next. नेक्स्ट बस ये दो प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए था. अच्छा, एक पॉइंट सर, ये राजकुमार जी से डिस्कशन था ये बताशा वाले का. हाँ बोलो. मैंने एक रिक्वेस्ट किया हुआ है राजकुमार जी से एक सेटअप बनाने के लिए मेरे लिए. तो राजकुमार जी से डिजाइन वगैरह मैंने डिस्कस किया था बस. हाँ, तो थोड़ा सा अभी मैं ये तो लास्ट टाइम किससे बनाया था बताशा मेकिंग वाला? वो तो हमने वर्कशॉप में बनाया था, तो फिर मैं वर्कशॉप में ट्राई करूंगा अगर दिक्कत है. वो भी करो, बट पैरेलली राजकुमार का सुनते हैं, राजकुमार क्या बोलते हैं. हाँ, हम लोग यहाँ सोचे थे सर कि अपने वर्कशॉप में ही बनाएंगे, क्योंकि शर्मा जो रॉ मटेरियल बाहर से खरीद करके लाएंगे और यहाँ पे ही बनाएंगे. तो उसका डिजाइन जो ड्राइंग दिया था वो मैं देख रहा था सारा चीज, तो करके उसको फाइनल करेंगे. ड्राइंग अभी भी देख रहा था मैं इसका. तो मंगल का भी सुन लेते एक बार. मंगल, कितने जल्दी बना दोगे? मंगल. हेलो. हाँ शर्मा जी शायद नहीं है. हाय शर्मा जी. हाँ है. अनम्यूट भी कर दिया बट बात सुने नहीं दे रहा. हेलो मंगल. चलो नहीं है, पूछ के. ठीक है सर. तो ये जो विनय, मैं ये पूछना चाहता जो तुम्हारा पुराना वाला जो है वो कोलाघाट पे भेजा, राइट? तो उसको एक बार फोन करो, उसको फोन करके बोलो ये वो क्या स्टेटस है. तो स्टेटस वो दे आर नॉट यूजिंग इट, हम इधर यूज करें ना करें, हम इसको वापस लेके आते हैं. बोलता आप वहां से भेजो, खर्चा हम दे देंगे एक्चुअली, यू कैन नॉट यूज इट. ठीक है ना? बिकॉज ये लेके वहां पे कवाड़ी में वो बेच के पैसा बना लेंगे ना मोस्ट प्रोबेबली, राइट? मेटल को बोले इफ यू आर नॉट यूजिंग इट तो आप भेजो. तो ये कौन कोऑर्डिनेट कर रहे थे तुम्हारे साथ? लेडी नहीं, वो थे क्या नाम, प्रोफेसर मंडल. ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो उनको बोलो अभी पता नहीं वहां का स्थिति तो काफी अप डाउन चल रहा है, बीच में इलेक्शन भी गया, गर्मा गर्म सब कुछ हुआ. ठीक है, बट उनका सोच क्या है बोलो. जो उनका सोच में अभी कुछ टेस्टिंग का है ही नहीं, वो कहा कि जंक यार्ड में रख दिया होगा. तो वो तो जंग लग गया होगा भाई दिस टाइम नो.
वहाँ पे तो ह्यूमिडिटी और ज्यादा है। तो बोलते हैं मैं पूछता हूँ सर, एक बार पूछ के इफ देयर इज नो प्लान कोशिश करो एक महीने के अंदर उसको वापस ले आया। हो सकता है उसी का पार्ट्स को यूज करके मंगल दूसरा बना देगा फटाफट एक। राइट। ओके चलो, थैंक यू विनय। अच्छा तो दत्त ये बना के टेस्टिंग में जाओगे, ये बात हुई ना? हाँ ये यस। बट कुछ बातचीत आगे बढ़ा है तुम्हारा जो आगरा में करना था? आगरा में सर एक्चुअली तब से कोरोना में मूवमेंट नहीं था ना, पर अभी दिस वीकेंड आई एम गोइंग टू आगरा, तो आई हैव प्लान टू टॉक टू देम। मैंने प्लान किया। तो मथुरा में भी बनते होंगे, बता सर, मथुरा में भी बनते होंगे? सर आगरा में मैंने प्लेस देखा है ऑलरेडी, मैं विजिट कर चुका हूँ एक दो बार वहाँ पर। तो आगरा में काफी आर्टिशियंस हैं, वो बनाते हैं वहाँ, तो मैं उन्हीं से डिस्कस करके आऊंगा अभी वीकेंड में। हमारा मथुरा से अच्छा तालमेल शुरू हो गया है तुलसी वाला के चक्कर में। ठीक है। तो मे बी यशवंत का जो पार्टनर है यहाँ पे, यशवंत एक बार बात करके देख सकते हो उनको पास भी? हाँ अगर बात करके अगर हेल्प करेंगे तो मथुरा भी पास ही है मेरे लिए, तो बहुत ठीक है सर, मैं कर लूंगा। हो सकते हो धर्मेंद्र जी कुछ कांटेक्ट दे दे। हाँ सर, हाँ सर। ओके ठीक है, थैंक यू विनय। थैंक यू सर। चलो राजकुमार बोलो और क्या क्या पॉइंट है? हाँ बस ये 2 ही प्रोजेक्ट हमारा डिस्कशन के लिए था आज। हाँ तो जनरल कुछ मीटिंग कुछ लाना चाहते हो तो 15 मिनट है हमारे पास। तुम्हारे तरफ से कुछ है तो बताओ। ठीक है। नहीं सर नहीं एक तो वर्कशॉप के लिए था ना, व्हाट्सएप के लिए मैम तो बोली प्लान कर रहे थे। हाँ अभी मेल आ रही है। हाँ मैम फ्राइडे को दिया है टाइम। जी तो 20 तारीख को मैम भी बोल रही, रवि सर भी बोल रहे हैं, आपके तरफ से भी है, तो मैं ये भेज देता हूँ मैम को ये डेट। एक मिनट उन्होंने बोली फ्राइडे ठीक है ना? हाँ नॉट द अदर डे, बट फ्राइडे भी संगीता को 100% पता नहीं, बट वो देख लेंगे संगीता। हाँ लेकिन ठीक है, फ्राइडे का फिर भी एडजस्ट किया जा सकता है, पर मंडे का तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। तो बट एक बार ना जो संगीता की सजेशन भी मैं भी अच्छा लगा, एक बार भूपिंदर गोदारा और प्रमोद तो ये दोनों को भी एक बार बोल दो, जो हम ऐसा 20 को रखना चाहते, तो व्हाट इज योर कन्वीनियंस? ठीक है सर। तो देन इफ दे से नहीं बिल्कुल ही खराब है, एक्चुअली आई थिंक फ्राइडे है तो आफ्टरनून है, ज्यादातर प्रैक्टिकल क्लास और ट्यूटोरियल क्लास होने की संभावना है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी आधा पौने घंटे नहीं भी रहेंगे तो ठीक है, बाकी पीरियड भी रह जाएंगे। तो एक बार मेल भेज दो, बट एक बार तुम वो विवा मैम को तो बोल ही दो, हम 20 को टारगेट रखते हैं, व्हाट इज योर कन्वीनियंस, आप बताइए। ठीक है सर, ये दोनों से पूछ लेता हूँ बस, उसके बाद जैसे ही होगा ठीक है, पूछ करके जैसे हो जाता फिर उनको मैम को बता दूँ। बाई चांस देखो मंडे तो नहीं होगा, फ्राइडे ही हम है, बट उनके लिए और कोई डेट सूट करता है तो पूछ लेना, बट आई थिंक शुड बी ओके, लेट्स ट्राई। ठीक है ओके। और एक बार सूरज से मैं सुनना चाहूंगा तुम्हारा इंटर्नशिप कैसे चल रही है? हाँ सर, अभी लास्ट वीक ही मीटिंग हुई थी, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में किए थे। बस एक क्वेरी था मैम से, जो डीपी एनजीओ यूनिट्स है, तो बच्चों का क्वेरीज था कि हाउ टू इनिशिएट इन द पोर्टल, और वो सब पूछ रहे थे। तो मैम उसके बारे में कुछ है तो मैं उनको फिर बता दूंगा। क्या है ना, उसमें तो अगर इनिशिएट करना है उनको, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि उनको कहो पहले काम पूरा कर लें। अच्छा अभी इनिशिएट करके बैठ जाएंगे और वो लटक जाएगा, काम पूरा नहीं हुआ तो फायदा नहीं है। तो पहले काम पूरा कर लें, अगर काम पूरा ठीक से हो जाता है तब इनिशिएशन, और उसके तुरंत बाद इनिशिएशन अगर एक बार अप्रूव हो गई तो कंप्लीशन हो जाती है। तो अभी जरूरी नहीं है कि अभी इनिशिएट करना है, इट इज ओके, बिकॉज प्रोजेक्ट है तो तसल्ली कर ले कि काम हो रहा है कि नहीं। अगर बीच में उनका इंटरेस्ट छूट गया कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, फिर वो इनिशिएशन जो है बेकार जाएगी, फिर विड्रॉल करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, फिर क्या करेंगे कि जो फैकल्टी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उनका वो देख रही हैं, तो उनको फिर हम लोग आपस में बांट लेंगे ना, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि कुछ लोगों के सुपरवाइजर प्रोफेसर साहब हो जाएंगे, कुछ की मैं, कुछ की प्रोफेसर रवि, हाँ कुछ गोदारा, कुछ प्रमोद, ऐसे मिलजुल के कर लेंगे।
तो फिर उसके बाद एक बार सुपरवाइजर अलॉट हो गया, फिर तो आराम से हो जाएगा सारा। पर पहले काम पूरा कर लें, तसल्ली कर लें। ओनली इफ वी आर सेटिस्फाइड विद द वर्क विल बी से कि आपको डीपी मिल सकता है, अब कर लो इनिशिएट। अच्छा, अभी काम ही नहीं करेंगे और इनिशिएट करके बैठ जाएंगे, फिर बाद में कुछ करेंगे भी नहीं तो फायदा नहीं है। आई थिंक दिस इज गुड आइडिया। तो उसको सबको बोल देना, जो जो क्वेरीज आएंगे। ऐसा तो कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट इंटरेक्शन मीटिंग कब है? क्या 20th बोले थे। हाँ, तो बोलो उस दिन को आपको क्लियरी कर देंगे, बट अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। उनको बता दो कि अभी रादर वेट टिल यू हैव डन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वर्क टू इनिशिएट द होल थिंग। अभी इमीडिएटली इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। दे मस्ट बी थिंकिंग कुछ डेडलाइन वगैरह होगी, बोला ऐसा कुछ नहीं एक्चुअली है। 201 के लिए होता है, जब वो इंटर्नशिप करने जाते हैं ना आईआईटी से बाहर, तो देन वी नॉर्मली आस्क देम टू इनिशिएट इट बिफोर दे स्टार्ट द इंटर्नशिप। क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करना है, वी वांट टू मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन ने एग्री किया है। तो यहाँ पर तो सब इंटरनल मामला है, सो देयर इज नो पॉइंट। तो उसको बोल देना कि दिस इज इंटरनल मामला है, आज लिखोगे तो परसों तुम्हारा, बट काम पूरा करो पहले, एंड देन 20th जब मीटिंग होगी उस टाइम में भी हम क्लैरिफिकेशन और दे देंगे, सो दैट यू गेट क्लियर। तो दिस इज वन टाइप ऑफ। मेरे पास एक दो मेल आ रही है, तो उसमें तो एक को तो मैंने जो जो बोला मैं उस दिन नहीं ये पाया, मैंने बोला काम करो, डोंट वरी फॉर द क्रेडिट, बट बाई चांस एट द एंड में बहुत ही काम ठीक ठाक करते हैं और लिस्ट में नहीं है, उस टाइम हम देख लेंगे, मे बी विल कंसीडर दैट टाइम। बट अभी तो मैंने उसको बोल दिया कि ऐसा काम करो, फ्रेम को सबमिट, ठीक है ना। और उनको कहो डायरी, उनको कहो डायरी मेंटेन करें, लॉगबुक मेंटेन करें कि कितना टाइम लगा रहे हैं, उनको भी अंदाज रहे ना कि हमने इतना टाइम लगाया है। They should also have an estimate how much time they're spending in various activities related to the project. तो आज भी एक मेल आया था, उसको मैंने राजकुमार और इसको दे दिया है, सूरज को। उन्होंने तो शायद रजिस्ट्री नहीं किया होगा कि नहीं किया होगा, बट फॉर व्हाटएवर रीजन, तो आई सेड चलो यू फाइंड आउट व्हाट इज योर इंटरेस्ट। उन लोगों को अलग से कुछ काम है तो देना चाहते हैं तो थोड़ा सा एंगेज हम करवा सकते हैं, and we'll see so that we don't try to break anybody's heart, no? तो ये मेरा इंटेंशन है। एक्चुअली जो भी आता है ना लिटरेचर रिव्यू तो उनसे करवा ही सकते हैं। ये वाली टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में देखो दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है, बस इतना तो करा ही सकते हैं। और उनके रीजन में किस तरह की स्पेशल चीजें हो रही हैं, उस तरह मतलब वन ऑफ द टू और बोथ can easily be done. Right. So that is something that we can ask them to do. That is one thing. तुम लोग PhD मास्टर्स करने वाले भी हमारे पास 3 बंदे हैं अभी एक्चुअली, नो अपना डिजिटल सर्वे कराना चाहते हो, कनेक्टिंग टू आवर रूट है, नॉट दैट तुम्हारा अपना है, जैसे शिप शेयरिंग का करना चाहते हो, मटेरियल का करना चाहते हो, राइट। और जैसे एर्गोनॉमिक की बात कर रहे थे आज सूरज, एर्गोनॉमिक की बात कर रहे थे, राइट। तो इलेक्ट्रिकल और बाकी सिस्टम मॉडलिंग का करना चाहते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिकल का बंदे, बॉय और गर्ल इज इलेक्ट्रिकल, नो। तो यहाँ पे तुम्हें तावा मेकिंग का भी बहुत सारे कुछ कर रहे हो, नो, थर्मोकपल वगैरह लेके, नो, इसको सर्किट बनाओ, ये करो, नो, डिजाइन करो, कुछ देके एंगेज करा दो, ठीक है ना। ठीक है ओके। सो राजकुमार और कुछ नहीं है तो हाँ बोलो। सर एक कमलेश मैम का प्रपोजल का सर, हाँ वो तो ओके कर दिया था ना, बताना कुछ तो लास्ट वीक कर देना चाहिए था। इस बाद में एक कुछ ये था, एक्चुअली मैंने सैटरडे को एक SMS भेजा था आपको, तो फोन पे बात नहीं हो पाई थी, तो फिर मैं तो मैंने मेल में बोल दिया ना, जब बोल दिया ओके तो ओके है ना। आई थिंक मेल में भेज दिया इसको, तो और क्या करना चाहते बताओ। वो तो मैंने वो ओके बोल दिया था। नहीं आप मैम को जो मेल भेजे थे ना, उसमें लिखे थे कि मैं इस वीक में डिसीजन लेके बता दूंगा। इस वीक मतलब कब वीक है? लास्ट वीक की बात हुई ना? लास्ट वीक की बात हुई है सर। हाँ तो उसको तुमको तुरंत भेज देना चाहिए था ना। तो मैम बोला अभी क्या करना है, आपका तो अप्रूवल हो गया, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। दिस वीक मतलब क्या होती है? जैसे दिस वीक मतलब होती है जो फ्राइडे सैटरडे खत्म हो रही है, राइट, संडे खत्म हो रही है। हाँ सर। हाँ अभी सैटरडे बैठ के भी मैं दिस वीक बोलूंगा तो एक दिन ही बचता है एक्चुअली, नो। अच्छा, तो इसमें मैं थोड़ा संगीता को थोड़ा सा बता देता हूँ केस क्या हुआ एक्चुअली। संगीता बीच में ना ये हमारा वेंडिंग कार्ड के लिए मिनिस्ट्री का मीटिंग करना था मैम को, तो उन्होंने कुछ वीडियो मांगी एक्चुअली। तो वीडियो मांगी तो सूरज ने, जो कमलेश मैम की जो स्टूडेंट है, जो भी पहले भी हमारे लिए बना के दी थी, तो बोला जो बना के दोगी
तो शी से कमलेश मैम बोलेगी तो कर दूंगी। देन कमलेश को जब अप्रोच किया गया था तो सी सर हमारा प्रोजेक्ट का क्या हो, तो प्रोजेक्ट का तो कुछ बताया होगा इन लोगों ने जो आपसे तो कुछ इनपुट हमको देना था, तो बोलो इनपुट में तुरंत उसी दिन ही दे दिया एक्चुअली, बट जब तक वो नहीं देखोगे तो हम और कुछ आई मीन हिंट यही दिया है एक्चुअली ना, वो शी इज बिजी एंड ब्ला 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 करके। तो जब मैंने फोन उठाया तो मैंने बोला मैम जो ये आपका जो प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन की जो बात है, तो आपसे तो कुछ क्वेश्चन मांगा था जवाब, तो वो तो उसी दिन भेज दिया। तो मैंने मेल चेक करके देखा, हाँ उसी दिन 4 बजे बात हुई थी, 5:30 बजे उन्होंने भेज दिए। तो ये हमारी तरफ से गलती थी, ये ना राजकुमार ने देखा ना यशवंत ने देखा, किसी ने देखा ही नहीं। तो आई सेड अपॉलॉजी फॉर माय साइड, वील रीड दिस थिंग, तो इसी वीक में हो जाएगी। बट देन आई सेड मैम ऐसा थोड़ी होती है जो प्रोजेक्ट मिलेगी तभी आपको स्टूडेंट हमारे लिए काम करेंगे। बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, व्हाटएवर शी वाज डिफेंडिंग हरसेल्फ that that girl was busy with doing something else, तो आपका इम्पोर्टेंट है तो वो काम बंद करवा के हम आपका करवा देंगे एक्चुअली। बट वो काम हुई क्या नहीं ये तो बताओ एटलीस्ट। हाँ सर, हाँ वो वर्मी कंपोस्टिंग का बना के दिया था, तो पहले 3 मिनट का बनाया, तो फिर बाद में मैम भी बोली कृति बापट मैम की उसको थोड़ा कम करो, तो 2 मिनट का बनाया। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया अभी कि वो डिटेल में टोटल इन्फॉर्मेशन अगर देते हैं तो हम 5 मिनट का बनाएंगे अलग से, कि कहीं पे देने के लिए या रूटाक वेबसाइट में देने के लिए कि लोग को प्रॉपर समझ में आए। तो वो अभी बनाना है, लेकिन मैम को जो देना था मैंने दे दिया, तो वो हो गया, वो वाला काम हो गया। अभी इसका नहीं हुआ है सर, अभी वो करना है वेंडिंग कार्ड का। ठीक है, तो जो भी है तो अभी जो है तो शी हैज रिप्लाइड ऑल दिस थिंग्स राइट, मैंने भी देखा है, ग्लैंस किया। तो तुमने देख लिया है सारे क्वेश्चन आंसर को? हाँ सर, मैम ने, हेलो सुन रहा हूँ, बोलो। मैं तो तुम ही तो जवाब दोगे ना, जो सारे ने जवाब दे दिया ना, मैंने तो ओके करने के लिए बोल दिया था कीपिंग माय आईज क्लोज्ड एक्चुअली। अच्छा, पर तुमने पढ़ के देखा नहीं है जो जवाब सही दी के? नहीं जवाब तो दी है सर उन्होंने मतलब वो जो बजट डाला है, मैं दिखाऊं सर एक बार कि हाँ एक मिनट सर। नहीं तो उसी दिन ही तो मैं को बोला ना, उसी दिन तुमको हाँ बोल देना चाहिए था। मैंने तो बोला जी तुमको भी तो जवाब दिया है, जब मैम को भी जवाब दिया, मतलब तुमको तो ये हिंटिंग किया ना। और तुमने व्हाट्सएप में क्या दिया मेरे को पता ही नहीं है एक्चुअली। ये सब चीज डिले नहीं करने चाहिए ना, ऑलरेडी हमने गलती की है और तुम उसको डिले करा रहे हो। दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल एटीट्यूड ना। हाँ बताओ क्या जवाब, क्या पूछा था हमने, क्या जवाब दिया बताओ। राजकुमार बताओ, हम पढ़ नहीं रहा है। करने के लिए बोला था इसको कि बजट के। हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ ये इन्होंने मतलब हमने जो उसको बोला था ना, तो प्रोफेशनल वीडियो से बनाने के लिए, प्रोफेशनल वीडियो मेकर से, तो उन्होंने वो ऐड करके उसमें दे दी। यही मांगा था हम लोगों ने उससे, और वो जो बोला 1 लाख रुपीज ऐड किया है उन्होंने। बट वो जो हमने बोला था जो क्या रिव्यू करना है, उसको स्टडी करना है, उसके बारे में क्या जवाब दिया उन्होंने? हमने बोला ना इसको इम्पैक्ट स्टडी करो। राजकुमार सुन रहे हो? हेलो, हाँ इम्पैक्ट स्टडी के बारे में क्या? इम्पैक्ट स्टडी के लिए उन्होंने तो सेम ही चीज वो दिया है सर, जो पिछले प्रपोजल में दिया है। करेगी इम्पैक्ट स्टडी जैसे उन्होंने लिखा है ना, हाँ कि वो जो था उसके पहले और स्टूडेंट सबके साथ किया था, तो अभी और बोला 30-40 जो रूरल स्टूडेंट है उसके साथ हम लगा के ये सच ही करेंगे। फिर कुछ कॉलेज में जा करके इसको कॉलेज स्टूडेंट से भी जा करके उसके साथ करेंगे। उसका जवाब कहाँ है? ये लिखा है ना सर, ये वाला। एक चीज और भी लिखी हुई है कि कमिटी शुड प्रोवाइड अस सम सैंपल वीडियोस ऑफ प्रोफेशनल क्वालिटी। हाँ वो तो सर वीडियो तो डाला है पहले, जो 57 डाला है उसका लिंक। नहीं, ये कुछ बोल रही है ना संगीता, कुछ बोल रही है क्या? बड़ा, हाँ थोड़ा बड़ा कर लो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। और एक एक पॉइंट को कवर कर लो जरा कि उन्होंने जो हमने अलग अलग चीजें बोली थी हर एक का क्या जवाब दिया है।
फेज 2 में डाला है इन्होंने 6 मंथ के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। उसके बाद बजट इन्होंने एलोकेशन किया है, बजट कितना चाहिए, और उसमें हमने ऐड किया था कि प्रोफेशनल वीडियो के वाला मेकिंग के साथ कितना होगा, तो वो भी ऐड किया उन्होंने लास्ट में। ठीक है, कमेंट से इम्पैक्ट दिया ना, इम्पैक्ट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये डाला है। हाँ, ये पढ़ो ना, द कमिटी रेज्ड अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ द इसमें to reiterate, our focus is on the awareness, both positive and negative aspects. We are not claiming that there is a higher level of mental health issues in the. Our focus is on the level of awareness. A substantial number of studies point to the lower level of mental health literacy in the rural area. In this series, our objective has to be to deliver psychoeducational materials for rural community. We have just initiated working with a group of 30 to 50 rural students in a series of online. आगे करो, आगे चलो. हाँ. Discussions on socio-cultural issues that have been video recorded with their consent. Now we are planning to do pre-testing on certain parameters, and post-testing will be conducted 6 months later. Besides, we have also been noting their feedback. The objective of the pre-post testing is to see if there has been any noticeable change in the level of awareness of mental health and the understanding of socio-cultural. Good. डालिए ना. हाँ. Creation of video by professional video makers. 10 most relevant and necessary videos of a professional quality will be made by professional video maker. We request the community to please provide us a few sample videos of a professional quality so that we are aware of the expectations of the committee. Also, additional budget of 1 lakh rupees for professional video making. तो ये तो देखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, चलने दो ना. नहीं, they would want ना, they would want, so we have to look for 1 or 2 videos. हम क्यों लुक करें, हमारा जो पसंद नहीं है सिंपल. नहीं, उसमें जब वो कह रही है हमको जवाब तो देना पड़ेगा कि सही, जवाब क्या देंगे, कमिटी टू प्रोवाइड, उसको कमिटी टू प्रोवाइड. वो लाइन को डिलीट कर देंगे ना, वो लाइन को डिलीट कर दो, और जाओ ऊपर जाओ. ये तो उनका रिस्पॉन्स है ना, हम कैसे डिलीट कर देंगे. नहीं, हम बोलेंगे ये हम इसको प्रोवाइड, हम उसको डिलीट कर देंगे, डिलीट करके लिखेंगे ये, और नहीं तो इसी का जवाब में हम लिखेंगे योर प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बट it is your, I mean, you please figure it out, know what is the good quality professional which will make us happy, because हमको जो अच्छा नहीं लगेंगे हम नहीं देंगे. हम we are the funding agency actually ना, हमको we are the customer, we are not customer. इस पर आपको दे रहे हो, हम अच्छे नहीं है, आप सोचो क्या चाहिए, हमसे क्वेश्चन पूछो. हम तो नहीं बताएंगे तो हम ही कोई नहीं प्रोजेक्ट कर लेते एक्चुअली. This is not the right way to tell it. This is very arrogant way of telling this. मैं तो ये जवाब नहीं देखा था ना, ठीक है ना. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ this is जब डिस्कशन में आएगी, right? We don't have to give a response to this. We can keep quiet on that thing. जब वो फ्यूचर में बोलेंगे आपको हमने बताया था, we say no, we don't agree with this thing. हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, right? आप मेंटल हेल्थ का काम आप करते हो, प्रोफेशनल है, आप बोलोगे प्रोफेशनल वीडियो चाहिए तो हम कोई मूवी डाल देंगे, कोई हॉलीवुड का मूवी लेके बॉलीवुड का मूवी लेके डाल देंगे. इस क्वालिटी को चाहिए, हाई डेफिनेशन का चाहिए. ये जो लिखा है, हाँ, ये जो लिखा है, इंटर्न को 15,000 पर मंथ और रिसर्च स्कॉलर को 20,000 पर मंथ. रिसर्च स्कॉलर को तो पहले भी पैसा मिलता ही है, और इंटर्न को 15,000 पर मंथ बहुत ज्यादा नहीं है. नहीं, जो भी है दिस शुड बी एज पर आईआईटी रूल. कुछ लिखने के तो बोल सकते मैं ताजमहल खरीदना चाहता हूँ ना, बट दैट्स नॉट पॉसिबल ना. तो दिस ऑल विल बी रूल्स है ना, इसमें आईआईटी रूल्स है ना. हाँ, आईआईटी रूल है. तो यू विल से दैट ओके दिस बजट हैज बीन अप्रूव्ड एज पर द, एंड ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फॉर द as per rule. बस करके to check, नहीं, it's better to check and say कि इतनी अगर हाई पेमेंट अलाउड नहीं है तो we have to specifically say, otherwise वो कहेंगे आपने बताया नहीं ठीक से हमको. No, संगीता, हम क्यों फंसे ये सब चीजें? She is also faculty here. She should figure it out क्या allowed है नहीं allowed. हम तो सिंपल एक सेंटेंस लिख देंगे as per IIT norms. नहीं, पर हम एक अपने लिए नोट तो कर लें कि what I would like to know from राजकुमार की what is allowed. इंटर्न को क्या हम रिसर्च स्कॉलर के लिए 25 तक अलाउड है, ठीक है ना. दैट आई एम टेलिंग यू, दिस आई नो. बट टॉप अप अमाउंट हाँ, टॉप अप अमाउंट, ठीक है, 25 पर मंथ तक अलाउड है. इंटर्न्स का कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली. समर में होगी तो आई मीन इंटर्न मतलब इट्स लाइक आजकल इंटर्न करके कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं आया है, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना. तो इफ देयर ए स्टूडेंट
स्टूडेंट होगी तो हमारी स्टूडेंट जो है वो लिमिट है शायद वो शायद ड्यूरिंग सेमिस्टर होगा तो 8,000 के 6,000 ऐसे कुछ है, बट ड्यूरिंग द वेकेशन होगा तो आई थिंक 20 तक भी जा सकते हैं, राइट? वेकेशन के टाइम पे 15,000 ज्यादा है 7,500। हाँ, तो वेकेशन में 15,000 और सेमिस्टर में 7,500। तो ये भी इंटर्न का भी, इफ द इंटर्न्स आर द स्टूडेंट्स ऑफ IIT दिल्ली और आउटसाइड IIT दिल्ली, सेम रूल विल बी अप्लाइड and provided they have to give a NOC also. तो आई थिंक डोंट गो टू दिस डिटेल में जाएंगे तो हम टाइम काफी स्पेंड करेंगे। जब पैसा देने के लिए टाइम आएंगे तब हम बोलेंगे एज पर रूल, इसीलिए मैं बोला दिस आर इंटरनल ट्रांजैक्शंस बेसिकली। दिस इज मोटा मोटा वो एस्टिमेट दे रही है ना जितना खर्चा हो सकता है। तो वी से दैट ओके वी एग्री, यू नो, all payments and everything will be as per rule. Everybody knows about it actually, you know? And she is also faculty, not an outsider, that इतना फॉर्मेलिटी करेंगे, तो इसीलिए हम थोड़ा टाइम बचाते हैं ना। तो मे बी यू कैन ड्राफ्ट ए मेल टू मी राजकुमार, मैं मेल भेज दूंगा और ये वाला कोट कर लेना। ये जो लाइन जो है, वी रिक्वेस्ट कमिटी टू प्रोवाइड द फ्यू सैंपल, तो दिस आई विल से दैट यू हैव टू फिगर इट आउट। मैं थोड़ा सा पोलाइटली जितना संभव है करके, so this we cannot provide. You show 10 samples, I will show which is the best one. ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। और मैम को ईमेल कर देना कि मैम ये आपका अप्रूव हो गया, प्रोफेसर साहा से आपके पास एक ईमेल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके चलो, ओके बंद करें। ये हाँ, बस एक चीज पूछना सर, नेक्स्ट वेल्डार के लिए टाइम नेक्स्ट महीने होगा डेट कोई? डेट सर 25th हमारा वेल्डार हो रहा है, ये 25th नेक्स्ट जो होगा। अच्छा, क्वार्टर सेंचुरी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, तो फिजिकली करें? किसी को बुलाएं सर? किसको बुलाओगे? फिजिकली मत करो, अभी फिजिकली मत करो, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर प्रोटोकॉल्स की फिजिकल मीटिंग शुड बी अवॉइडेड। चलो प्रमोद को बुला, प्रमोद एक बार दिया था ना, गुदारा को बुलाओ। हाँ ठीक है सर। नहीं तो ज्योति को बुलाओ। एक्चुअली ये इन सब लोगों से, जो लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोई ना कोई प्रोजेक्ट है ना, उन सबको वर्कशॉप के बारे में बता दो तो दे फील इन्वॉल्व्ड। तो उनसे पूछा तो जा सकता है हम प्रपोज कर रहे हैं, अब आप आएंगे क्या, तो फिर वो उनके आने की संभावना बढ़ जाएगी। लास्ट मिनट पे बताएंगे तो दे थिंक हमको सिर्फ पूछा ही नहीं। हमारा जो रूटा में पीआई जितने भी है मतलब प्रोजेक्ट के, वो तो हम भेजते ही है, बट तुम उसके सबका कन्वीनियंस में डेट फिक्स करना चाहोगे तो मुश्किल हो गया। नहीं, पर कम से कम 2-3 लोग जो ज्यादा थोड़ा इन्वॉल्व है। हाँ, तो ये दोनों तो पूछ ही लेंगे ना, प्रमोद को और गोदारा को तो पूछ ही लेंगे, पूछ लेंगे दोनों। हाँ, और आज हमारी क्या डेट है? आज हो गया 13, तो 15 को हमारा इंडिपेंडेंस है, तो 13 को कर लो। 13 फ्राइडे है, फ्राइडे बट उस टाइम क्लासेस शुरू हो जाएगी, राइट संगीता? हाँ, टेंटेटिवली रखो जो हमारे स्केड्यूल स्टैंडर्ड है 10 से 1 मंथली मीटिंग। बाई चांस क्लासेस वगैरह होगा तो एडजस्ट कर लेंगे। आई मीन एडजस्ट मतलब ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। कब है एग्जाम? वो देखना पड़ेगा मुझे, माइनर की। तो अभी फिलहाल 10 से 1 रखो, और जब हमारा एग्जैक्ट स्केड्यूल आ जाएगा तब हम डेट चेंज कर देंगे। ठीक है सर। ओके, डन? ठीक है सर। हाँ सर। ओके, थैंक यू ऑल, बाय। ओके, थैंक यू। बाय बाय। बाय।